Good morning. I'm Dr. Mukesh Parik, and I'm live. I'm live with the revision class on T.S. Eliot. Kindly show your presence so that we can start the class. Join us, please. What is wrong today? Where you are? I can't see many of you today. Kindly join us. Wave your hand so that I can feel that you're here. Okay. Kindly write yes so that I can feel. Jai Shri Krishna Swati. Shriya Sharma. Good morning, everybody. Happy Saturday. Okay. As you all know that we started talking about modernism and the modernistic writers yesterday, and before that we were discussing postmodernist writers. We discussed many writers from postmodernism. Even I discussed many aspects of the postmodern novel also. Yesterday we discussed what is modernism. Okay. So, and I think the sun also rises. I discussed a little bit that, but before that I discussed lost generation and all the other related things. And I asked you people again to go to my YouTube channel Mukesh Parik Cosmos, so that you people can see certain important videos which have been unlocked there. And after the exam I will log them. So kindly keep watching these videos. They are going to help you all. For example, I asked you to watch that video on transcendentalism, and I again ask you to kindly watch two other videos on my YouTube channel based on modernism. Clear? So today I'm ready with T.S. Eliot. As you all know that T.S. Eliot was a major voice in the starting part of the first 3 or 4 decades of the 20th century. Clear? And he is famous as a poet, as a critic, as a dramatist, and I think what not, because his understanding of literature is in a manner was a response to Victorian age plus Romantic age. Because when we see his essays on say objective correlative, that essay, The Problems of Hamlet, he wrote, and the way he praised John Donne, the way he criticized Wordsworth and his theory of poetry, these all, if we take YouTube, अभी तक आपको मालूम नहीं है क्या YouTube के बारे में? हुमा खान आप इतने दिनों से मेरे से जुड़े हुए हैं, मुकेश कुमार कॉस्मॉस, और अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे क्लास के बाद में कांटेक्ट करना 9828402032. This is my WhatsApp number, and if you contact me, I'll send you the link of my WhatsApp, my YouTube channel. Okay. अच्छा, मैं जब तक कि मैं इन वीडियोस को लॉक नहीं कर देता, इससे पहले मैंने इनको फ्री कर रखा है, सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन वॉच देम. ओके. जैसे मैं रोज कहता हूं कि ये एक बहुत ही टिपिकल पीरियड है. हो सकता है हमारी लाइफ में दोबारा हम ऐसा पीरियड कभी नहीं देखें. इतना खतरनाक पीरियड चल रहा है, खास तौर पे एजुकेशन के सेक्टर पे जिस तरह से काले बादल मंडरा रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग को भी हम उतना अच्छा हम टीचर्स लोग नहीं मानते हैं. ठीक है, ideas can be transferred from one to the other, but then that feel is always missing. Clear? So पर आजकल के स्टूडेंट जो YouTube से पढ़ते हैं, ठीक है, उनका अपना मानना है, बट याद रहे everything is not on YouTube and everything is not on internet. Clear? So but still मैंने काफी अलग तरीके के वीडियोस आप जाके देखिएगा YouTube पे. People don't have more than 20 minutes video, because all of a sudden somewhere, you know, certain definitions emerged, certain definitions came into the world, and I don't know from where.
कि 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए. इवन आई अटेंडेड a workshop organized by UGC 2 years back, and there also that resource person, he was also a professor in university there. What he was telling us that in the Western culture, it has been a trend that a student there of primary school do not he doesn't have a concentration of more than some seconds. And there also I did not agree with that person, whether we are living in a very eastern world or say they are living in the western world. But that does not mean that because ये जो कोरोना का क्राइसिस आया है, आपको नहीं लगता इसने ऑल टुगेदर डेफिनेशंस को चेंज कर दिया है? मतलब जो लोग कहते थे कि 15-20 मिनट का वीडियो ही हम देख सकते हैं, आज उनको मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे वीडियो पे लेक्चर लेते हुए दिखा सकता हूं आपको. सो जब कोई इंटेलेक्चुअल कोई बात कहते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे लोग, whenever they say something, there is always some essence in that. Okay, तो उल्टे सीधे टिकटॉक के वीडियोस देखने से बढ़िया है कि आप लोग अपना टाइम यूटिलाइज करें और मेरे यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस को लगातार देखें. मैंने बिल्कुल ह्यूमैनिटी का ध्यान रखते हुए, सभी स्टूडेंट कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए उन वीडियोस को अभी तक लॉक नहीं किया है. मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सभी वीडियोस देखिए, सारा दिन आपके पास है, उनको खाना खाते वक्त भी आप चला लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स रहे. इट सीम्स लाइक somebody is lecturing you, and I can't answer your questions, Mr. Rishi, right now because it's a regular class here, and kindly if you have some problems or you want to ask me something, you have to give me a separate WhatsApp for that. Clear? And I think you're praising me for that. Okay, that's great. That's great. Okay, that he's saying that Rishi Pal is saying that he has had a lot much benefit out of these videos for his central university entrance exams and all. Okay, that is a different thing because आप अगर एक डिटेल्ड लेक्चर्स को यूट्यूब पे डाल दोगे तो ऑब्वियसली जो भी सुनेगा उसको बेनिफिट तो होएगा ही ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आज सबसे पहले आपको जितने भी नए स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, डायरेक्टली यू हैव टू कम टू माय ब्लॉग ऑन माय वेबसाइट mukeshparikh.com या englishcosmos.org. If you have 2 phones, you can get access to 2 phones. Kindly get hold of the another phone, or you can open another laptop. आ जाइए फटाफट से. मैंने 4-5 चीजें अपलोड की हैं, and then you can understand कि वो चीजें important क्यों हैं. Okay, when we talk about modernism, when we talk about T.S. Eliot, so during this lecture I'll be talking about a lot many things of my understanding, the factual details of T.S. Eliot, but because he's a poet, okay, and The Wasteland is considered to be the most important poem. Of this poem, I think recurrently they have been asking us questions. So मैं The Wasteland तो पढ़ा नहीं सकता because it requires lot many hours. तो मैंने इसका भी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं, where I am explaining line after line this poem. So this is your duty now to watch these videos. Clear? अब आते हैं कि मॉडर्निज्म में T.S. Eliot was influenced by certain things. As you all know that he was an American, and then he went to Paris, France, and then he came to England. And once he came to England, that was ultimately a kind of dreamland for that country. एक आपको एक बेसिक बात बताता हूँ. देखिए, हेनरी जेम्स और T.S. Eliot ये 2 ऐसे राइटर्स हैं, those who were born classicists. They considered that America is not the right place. Okay, that modernity which America shown, I think they considered that this is not modernity. Okay, and they wanted to go back to sort of classicism, sort of Catholicism, sort of tradition, sort of ritualistic, and I think for them the most important part was tradition and history. Clear? And that is the reason that Henry James, being an American writer, all his novels, most of his novels, the protagonist anyhow comes to England. In the same manner, if we look at the poems of T.S. Eliot, एक तो जरूरी नहीं है कि T.S. Eliot की पोएम्स की जब हम बात करें तो केवल वेस्टलैंड ही हमारे दिमाग में आए, और इसीलिए मैं आज आपको बहुत सारी पोएम्स को थोड़ा पढ़ाऊंगा, बिकॉज लॉन्ग पोएम्स कैन नॉट बी टॉट ऑनलाइन दिस वे.
तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता चलेगा, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट टी.एस. एलियट इज वाज दैट ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इम्प्रेशनिज्म. तो अब आप मेरे वेबसाइट पे आ गए होंगे, उसमें उसके बाद मेरे ब्लॉग पे आ गए होंगे. देखिए मैंने लिटरेरी इंप्रेशनिज्म का एक सबसे पहले क्या अपलोड किया बताइए मैंने 12 सितंबर के टाइटल में. सबसे पहले क्या आपको नजर आ रहा है, मुझे लिख के बताइए. व्हाट हैव आई अपलोडेड ऑन माई ब्लॉग? पहले आप मुझे वो बताइए. दोज हु आर सीरियसली वॉचिंग मी, दोज आर नॉट ओनली द wanderers and the comers and the goers, those who are ready with their pen and notebook, kindly use your split screen on your mobile and go to my website mukeshparikh.com or englishcosmos.org. It will take us some seconds, and go to my blog there. You will find my blog there. You tell me what have I uploaded there for you today. The first thing which I uploaded is, you are going to tell me now. I'm waiting. Can you tell me what is there uploaded, what you find there? Yes, first answer I've got. That's great. Preludes. It is preludes. Both your spellings are wrong. Mushfiq's spelling is also wrong, and Kundan's spelling is also wrong, and Shatrupa's spelling is also wrong. Swati Parikh's spelling is also wrong. Because it means you did not read, because prelude is written by Wordsworth. Clear? Saksham Singh's spelling is also wrong. You should write preludes, because preludes is written by T.S. Eliot. There are 4 vignettes, small poems. बहुत सारी poems आपको वहां पे दिखेंगी. उसमें सबसे पहले आप आ जाइए आज. I would like to ask you to come on literary impressionism. वहां पे there is a post you will find, literary impressionism. पहले मैं वो समझा देता हूं. And in your notebook also you should write literary impressionism. Clear? अच्छा देखिए, there are 2 things. One is impressionism as a technique of painting, which is considered to be, or which is said that it heralded modernity, or say modernism of all sorts. Clear? But I'm not talking about impressionism as a style of painting. Clear? I'm talking about literary impressionism, and I'm going to read from my blog now. I'm going to read it from my blog. आप लोग यस बोलिए, मैं बोलना स्टार्ट करूं. अच्छा, आज आपको लिखना कम है, जस्ट कुछ पॉइंट्स ही लिखने हैं, बिकॉज नोट्स मैंने जानबूझ करके ब्लॉग पे अपलोड कर दिए हैं, सो दैट यू पीपल कैन टेक द नोट्स फ्रॉम ब्लॉग. ओके. So you have corrected the spellings now, all of you. That's great. So what I'm reading now, this literary impressionism. पहले आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि literary impressionism क्या होता है. What does the word impressionism tells us? Impressionism का मतलब होता है आपके ऊपर क्या impression पड़ा. Okay, the things which affect you, or the things which have effects on you. So that effect is obviously subjective. Different people have different, effect of different things. But when we talk about writing style, जैसे मैं ऐसे सोचता हूं कि एक स्टूडेंट को the moment he attends a class of this sort on modernism, he should be aware about 2 particular terms. एक तो one should be too much aware about symbolism as a movement. Okay, so write down in your notebooks first of all, symbolism as a movement. Okay, and sometimes we being students of literature, for us symbol is something quite ordinary thing, because we trace symbols almost in every poet since say Shakespeare. Okay, I don't deny the fact that symbol is something like a kind of suggestive image, okay, which gives you some suggestions, and which creates certain ideas in your mind. If you look at that particular object, it creates many responses in your mind, and then you are able to associate many things, and then suggestivity, that suggestion, इसीलिए symbol को बोलते हैं, it is always a kind of suggestion. Okay, so it is always suggestive. मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. देखिए, आपने गणेश जी की मूर्ति देखी है सभी स्टूडेंट्स ने? बताइए, यस लिखिए ताकि रिस्पॉन्सिव हो जाए क्लास. आप इफ यू आर हिंदूज, यू मस्ट हैव सीन गणेश जी. ओके,
उनको विनायक भी बोलते हैं। अब कई बच्चों को ये सारी डेफिनेशंस नहीं मालूम होती है, एंड आई वोंट लाइक टू डाइग्रेस फ्रॉम द क्लास कि उनको विनायक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नायक के मतलब शिव, मतलब इंट्रूजन ऑफ द मेल के बिना पैदा हुए थे, मतलब वो पार्वती के मैल से पैदा हुए थे। समझ में आ रहा है? इसीलिए उनको विनायक बोला जाता है। ओके, उनको गणपति भी बोला जाता है बिकॉज गणा एज अ वर्ड इन ऋग्वेदा ऑल्सो ऑकर्स। क्लियर? सो वो अलग बातें हैं। बट इफ यू सी द सिंबॉलिज्म इन द स्टैच्यू ऑफ आइडल ऑफ गणेशा, तो आपको दिखेगा कि उनके हाथों में एक में फरसा है। फरसा जानते हो? एक तरह का कुल्हाड़ी टाइप की, ओके, फरसा। और एक हाथ में रस्सी है, रस्सी वो भी टूटी हुई, टुकड़े, रस्सी के टुकड़े हैं। सांप है, उनकी जो टमी है उसके ऊपर सांप है, और चूहा उनका वाहन है। कितना पैराडॉक्सिस से, आयरनी से भरा हुआ एक इमेज आपके सामने आता है, isn't it? So if you are Muslim, then you must have not paid attention to all such things. But irrespective of religion, I think we should watch everything. We should see. We should intently look at everything and try to understand, grasp the details of everything, so that we can become intelligent reader, intelligent watcher. तो गणेश जी को हम सबसे पहले पूजते हैं। हम हिंदुओं में गणेश जी को प्रथम पूजा जाता है, ओके, और उनको विघ्नहर्ता माना जाता है। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट सिंबॉलिज्म? जो आइकोनोग्राफी है गणेश जी की, उसमें फरसे का मतलब है दैट ही इज अ गॉड ऑफ रीजनिंग, ओके, विवेक के देवता माने जाते हैं। गणपति, जिसका केतु खराब होता है ना, जन्म पत्री में जिसका केतु अगर सही नहीं है, तो उसको गणेश जी की उपासना करने के लिए कहा जाता है। उसका मतलब है दैट यू हैव टू बी बिट लॉजिकल, यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ लॉजिकलिटी इन योर माइंड। तो आपको वो जो इमेज दिख रही है ना, कि आप हर चीज को पहले तोड़ो, फिर रस्सी की तरह उनको जोड़ो, ओके, एंड देन लाइफ इज फिल्ड विद कॉन्ट्रडिक्शन एंड ऑक्सीमोरॉन्स, इट्स ऑल पैराडॉक्सिकल। तो सांप को, आपको मालूम है, सांप चूहे को खा जाता है। तो एक गॉड है जिसका वाहन चूहा है और उनके पेट के ऊपर सांप लिपटा हुआ है। इसका मतलब है इट्स ऑल एन आइकोनोग्राफी ऑफ पैराडॉक्सिकलिटीज, ओके, पैराडॉक्सेस, आयरनीज ऑफ लाइफ। सो इट विघ्न आएंगे लाइफ में, एंड देन यू हैव टू मूव, यू हैव टू एक्सेप्ट दोज रेस्ट्रिक्शंस एंड क्या बोलते हैं उनको, विघ्नों को इंग्लिश में, ऑब्स्ट्रक्शंस इन योर लाइफ। ठीक है? इसका मतलब है कि वंस यू वर्शिप अ गॉड लाइक दैट, इसका मतलब है यू आर अडॉप्टिंग, यू आर एक्सेप्टिंग obstructions, hurdles in your life. Okay, if you worship a god like that, it means you have accepted through the iconography कि मैं इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो ये इम्प्रेशनिज्म जो टेक्निक होती है ना, इन इम्प्रेशनिज्म एक राइटर जो होता है क्वाइट सब्जेक्टिवली एक चीज को महसूस करता है। ओके, अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, एक होता है इम्प्रेशनिज्म, एक होता है एक्सप्रेशनिज्म। देखिए, एक्सप्रेशनिज्म इज ऑल अबाउट लाइट एंड शेडो, ओके, कॉम्बिनेशन। आपको याद है 2 या 3 नेट पहले दे आस्क्ड अस अ क्वेश्चन अबाउट कायरोस्क्यूरो, CHIAROSCURO। कायरोस्क्यूरो का मतलब क्या होता है? शेडेड, शेड्स, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि एक्सप्रेशनिज्म इज मोस्टली यूज्ड इन प्लेज, ड्रामाज में, एंड इम्प्रेशनिज्म इज मोस्टली यूज्ड इन नॉवेल्स, not everywhere, certain passages can be there where you can find exactly an impressionistic technique. So these poems, which I have uploaded today, particularly preludes by this writer T.S. Eliot, they are particularly the most important examples of this impressionistic technique in literature. ठीक है? तो literary impressionism क्या होता है? आप पढ़िए मेरे साथ साथ, ब्लॉग खोल लीजिए। लिटरेरी इंप्रेशनिज्म का जो भी मैंने अपलोड किया उसमें लिखा हुआ है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन इंप्रेशनिस्टिक आर्ट मूवमेंट एंड मेनी राइटर्स अडॉप्टेड अ स्टाइल दैट रिलाइड ऑन एसोसिएशंस, हाउ यू एसोसिएट थिंग्स। ओके, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? दैट second point is about symbolism, that any writer who is influenced by literary symbolism, Sunil Nishad, it is not persona and shadow, it is all about light and darkness in expressionism. Okay, subjective touch and its effect, and looking at particular thing and its edges
is called impressionism. So please let me explain first of all. I explained expressionism also just to so that you people can differentiate, क्योंकि knowledge के लिए कायरोस्क्यूरो टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है. हमको कई बार स्ट्रक्चरलिस्टिक टेक्निक से भी चीजें समझ में आती है. वी अंडरस्टैंड थ्रू बाय बाइनरीज, बाय क्रिएटिंग बाइनरीज ऑल्सो. दैट सपोज समबडी वांट्स टू एक्सप्लेन that what is say darkness, then one has to show him light, then he will automatically understand that what is darkness. Clear? So sometimes we have a binary and we have a kind of chiaroscuro, the approach of chiaroscuro, through which we can understand things. That's why though I want to explain impressionism the very beginning of this modernist class on modernism and T.S. Eliot, but I'm explaining this so that I can create a kind of a duality. ओके, सो आगे आप पॉइंट बनाइए, लिख लीजिए सिंबोलिज्म. आज आपका इट्स अ होमवर्क that you need to understand symbolism in detail. Symbolism is a movement which occurred in France, and there are 4-5 particular writers. इनके नाम मैंने दे रखे हैं: Baudrillard, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine and Lafargue. 5 राइटर्स के नाम आपको याद रखने हैं. And T.S. Eliot was highly impressed by Baudrillard. If you remember, in his Wasteland, he has quoted certain lines in the very first section. Baudrillard, Mallarmé, Rimbaud, R-I-M-B-A-U-D, Rimbaud, Verlaine, and Lafargue. Okay, so he focuses on a particular character's perception. The edges of reality are blurred by choosing points of view that lie outside the norm. What is the meaning of norm? देखिए, रोजमर्रा का जो जीवन होता है, डे टू डे लाइफ, फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ परसेप्शन, इफ यू लुक एट अ पर्टिकुलर थिंग, तो आपको, बिकॉज योर परसेप्शन हैज बीन मेड, ओके, योर परसेप्शन हैज बीन क्रिएटेड by the kind of realities, by the kind of social upbringing. If you are a boy, then certain things are associated which are too much masculine in you. Clear? सोमाली नंदी जी, मेरा ब्लॉग बेटा आपको मिल जाएगा mukeshparik.com. आप www.mukeshparik.com या तो ये वेबसाइट खोल लीजिए या मेरी दूसरी वेबसाइट खोल लीजिए, englishcosmos.org. ओके, englishcosmos .org. तो वहां पे आपको मेरा ब्लॉग मिल जाएगा. ब्लॉग पे you can find this, I'm reading from the blog. Study material I have uploaded on my blog, Literary Impressionism. Otherwise it is quite impossible for me how to teach. Okay. So what I was talking about, if I'm explaining impressionism, I can't read Sunil right now. Okay, so I think you're not asking a question. Clear? Because expressionism is totally different than impressionism. So let me explain again that impressionism focuses on a particular character's perception of events. That how he or she looks at a particular event. और वही मैं समझा रहा था, this is all about subjectivity and it has a touch of naturalism in you. Naturalism, अब देखो, एक के बाद एक नई टर्म्स आएंगी. How many of you are aware about naturalism? There are 2 terms which are very very important: realism and naturalism. Realism सबको मालूम है that whatever you are looking, you are just creating in your text. Clear? That is realism. That your characters, whatever they are speaking, what they are thinking, whatever they are wearing, the kind of houses you are showing in your text, and all things are related to the reality. Okay, but naturalism is again a kind of realism, but it has something to do with the theories of Darwin. Okay, so Balzac and Thomas Hardy, 2 names come to my mind. Balzac का नाम सुना होगा, French writer. एंड हार्डी, टॉमस हार्डी को आप देखिएगा, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कभी भी तरक्की नहीं करते हैं. ट्रेजेडी इज ऑल इमिनेंट इन देयर लाइफ. व्हाई? बिकॉज दे आर एम्बेडेड इन देयर सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड पर्सनल एंड हेरिडेटरी लाइफ्स. एक आदमी गरीब है तो आप उसको फेरी टेल की तरह अचानक से अमीर होते हुए दिखा देते हो. ओके, दैट इज नॉट नेचुरलिज्म, बिकॉज इन रियल लाइफ जो हम सपने लेते हैं वो एकदम से पूरे नहीं होते. वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर देम, एंड until and unless something supernatural agency does not work in our life, we cannot come out of that. Okay, और ये भी एक गलत बात है कि हम हार्डी को पेसिमिस्टिक बोलते हैं. आई एम सो सॉरी, वो पेसिमिस्टिक एक कॉमन टर्म हो गई जिससे हम हार्डी को पहचानने लगते हैं, बट इट्स नॉट हिज पेसिमिज्म, एक्चुअली इट इज हिज नेचुरलिज्म. ये वो राइटर है जिन्होंने जो
आपको मालूम ही है कि एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, एवोल्यूशन क्या होता है बताइए? नेचुरल एवोल्यूशन। विक्टोरियन एज के मिड में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक के पब्लिश होने के बाद में डार्विन की जो थ्योरी आई थी कि हम लोग अपनी मर्जी से ऐसे नहीं हैं, nature is working in the naturality, some naturalism is present in us, okay, and our socio political circumstances, our social aspects, economy, ये सारी चीजें जो हैं, they are all linked with our background, and until and unless we don't change our background, ये कौन हंस रहा है मेरे ऊपर? जो हंस रहा है वो क्लास छोड़ के जा सकता है, ठीक है? अच्छा, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट कि रियलिज्म और नेचुरलिज्म में जो डिफरेंस है, ये भी एग्जाम में पूछ रखा है आपसे, ओके? सो जो कैरेक्टर का परसेप्शन होता है इवेंट्स का, द एज ऑफ रियलिटी आर ब्लर्ड बाय चूजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू दैट लाई आउटसाइड द नॉर्म। ये एग्जैक्ट लाइन आपको याद रखनी है। सो इंप्रेशनिस्टिक लिटरेचर कैन बेसिकली बी डिफाइंड एज व्हेन एन ऑथर सेंटर्स हिज स्टोरी और अटेंशन ऑन अ कैरेक्टर्स मेंटल लाइफ, ओके, सच एज द कैरेक्टर्स इंप्रेशंस, feelings, sensations, emotions, rather than trying to interpret them, okay? आप किसी कैरेक्टर के इंप्रेशंस को समझ रहे हो और देन यू आर इंटरप्रेटिंग देम, तो वो एक इंटरप्रिटेशन वाला लिटरेचर हो गया। इंटरप्रिटेशन वाला लिटरेचर टी.एस. एलियट डज नॉट लाइक, ओके? दैट्स व्हाई टी.एस. एलियट फॉलोड दिस इंप्रेशनिज्म कि whatever particular person is feeling in his socio-cultural environment, is trying to exactly go into the mind of that character and creates that reality in front of us, okay? Or the term is used to describe a work of literature characterized by the selection of a few details only to convey the sense impressions left by an incident or scene। और इस चीज को समझाने के लिए प्रिल्यूड्स जो मैं पोएम लेके आया हूं 4 आपके लिए, फटाफट से आ जाइए। लेट अस कम टू द फर्स्ट प्रिल्यूड बाय टी.एस. एलियट। ये जो 4 प्रिल्यूड्स हैं, दीज 4 प्रिल्यूड्स आर वेरी फेमस एंड दे विल आस्क यू एनी पर्टिकुलर लाइन, और मैंने आपको बता दिया, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट व्हाई दीज 4 प्रिल्यूड्स आर फेमस, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी द पोएम्स इन वर्कशॉप। राइटर जब इन पोएम्स को लिख रहे थे व्हेन ही वाज इन फ्रांस, ओके, एंड दैट अर्बनाइजेशन का जो नेगेटिव इफेक्ट है एक आम आदमी के ऊपर, लिख लीजिए इसको, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, ओके, एंड द काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड पॉवर्टी। एक मार्क्सिस्ट एंगल से भी इस पोएम को देखा जा सकता है, इन 4 पोएम्स को। impressionistic angle से तो artistically we can look at the poem, okay, but to snatch the meaning out of this poem, we should look like the writer has shown us the riff-raff। एक टर्म है riff-raff, लिख लीजिए फटाफट से, और the hoi polloi। मैं जानबूझकर टफ इंग्लिश नहीं बोलता हूं सो दैट कहीं मैं वोकैबुलरी ना समझाता रह जाऊं, बिकॉज एक अच्छा टीचर वही होना चाहिए जिसको अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा वोकैबुलरी समझाने का मौका ना पड़े क्लास में, ताकि वो लिटरेचर को समझने लगे, ओके? वोकैबुलरी घर पे बैठ के भी पढ़ी जा सकती है, क्लियर? अ स्टूडेंट डज नॉट कम इन अ क्लास टू अंडरस्टैंड वोकैबुलरी एंड ऑल। चलिए पहले बताइए, हॉय प्लॉय लिख लीजिए, क्वाइट पैराडॉक्स। जैसे मैं आई डोंट वांट टू टेल यू वोकैबुलरी बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू राइट नाउ। हॉय प्लॉय, HOI, हॉय डैश POLLOI, हॉय प्लॉय, और द रिफ रैफ, ओके, और द प्रोलेटरिएट, ओके, प्रोलेटरिएट क्लास। तो ये जो पर्टिकुलर पोएम्स आप पढ़ने जा रहे हैं, फटाफट से इनको पढ़ लेते हैं। अलग अलग इमेजेस हैं। अगेन अगर किसी को टी.एस. एलियट समझना है तो आप समझ लीजिए, इन सम ऑफ माय अर्लियर क्लासेस आई वाज टॉकिंग अबाउट कोलाज। अलग अलग विनियट्स द राइटर हैज क्रिएटेड एंड these vignettes are images, okay? The technique of imagism has been used in these poems, ठीक है? ये एक दूसरे से कोई बात कर रहा है मेरी क्लास में। आई थिंक आप लोगों को क्लास छोड़कर साइड में चले जाना चाहिए बातचीत करने के लिए, अदरवाइज आई विल बी डिस्टर्ब्ड बाय लुकिंग एट योर कमेंट्स एंड ऑल। चलिए, शुड आई स्टार्ट रीडिंग? शुड आई स्टार्ट? ओके, should I start? I'm reading the first prelude. The winter evening settles down.
the writer has shown a scene. The winter evening settles down with smell of steaks in passageways. Steaks hota hai a kind of meat. Everybody knows. 6 o'clock. Ek line, a single line is a single image. Winter evening settles down. There is a personification of this evening with smell of steak in passageways. The writer has shown streets. In that streets there is a smell. 6 o'clock. Okay, the burnt out ends of smoky days. A very beautiful and a special line of T.S. Eliot, which can be found in other poems also. Okay, burnt out ends of smoky days. The writer has considered a day as a cigarette. Okay, and the day has ended. So it's a beautiful imagery. एक बात का ध्यान रखना है. This writer was influenced by symbolist movement. Okay, symbolism. And these writers, जैसे उनको इन राइटर्स ने, सिम्बॉलिस्ट राइटर्स ने सिखाया था that you should not give your own emotion. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है डिटेल में. जिनको पढ़ना है पूरा का पूरा ऐसे यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा. मैं लेक्चर दे रहा हूँ उस पर लाइन आफ्टर लाइन. तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में सेकेंड सेक्शन ऑफ द एसे द राइटर सेज that it's not, your emotions are not important. Okay, you are just a robot. Okay, and being a writer, you are to transfer whatever you are looking at. You have to, that scene should go inside you and should come out, and it should be printed on the paper. तो writer कह रहा है कि the burnt out ends of smoky days and now a gusty shower wraps the grimy scraps. Grimy का मतलब होता है grim, gloomy, bleak, dark. Scraps का मतलब अखबार के टुकड़े और गंदगी. Writer is showing that again the shower comes. Gusty shower का मतलब आंधी आ रही है, साथ में shower आ रही है. Of withered leaves about your feet. Simple, चारों तरफ टूटे हुए पत्ते उड़ रहे हैं. And newspapers from vacant lots. And the writer has shown the modernity in such a sense, because people who read evening newspapers there, or say afternoon newspapers, they just leave it where they read them. So in the vacant lots, newspapers are also flying here and there. The showers beat on broken blinds and chimney pots. It means the writer must have been sitting somewhere in a locality which is a kind of slum area, or the area where hoi polloi or the riffraff people live. Hoi polloi and riffraff का मतलब होता है working class और below working class लोग. Okay, so broken blinds का क्या मतलब होता है? खिड़की के जो पर्दे होते हैं, जिनको अपन लोग ऐसे स्लाइड करते हैं. जैसे मेरी खिड़की पे जो पर्दा लगा हुआ है वो ब्लाइंड है, उसको ऐसे खींच करके ऊपर किया जा सकता है. ओके, एंड चिमनी पॉट्स, और वो भी टूटे हुए हैं. एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट अ लोनली कैब हॉर्स स्टीम्स एंड स्टैम्प्स. ये लाइन आ सकती है एग्जाम में. एक अकेली घोड़ा गाड़ी खड़ी है, कैब हॉर्स. स्टीम्स एंड स्टैम्प्स का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ विंटर सीजन जो घोड़ा है वो सांस से उसके भाप निकल रही है. एंड स्टैम्प्स का मतलब उसके पैरों पे जरूर मच्छर या मक्खी काट रही होगी, तो वो खड़ा खड़ा अपने पैरों को बार बार ऐसे उठा रहा है. ओके, सो दिस इमेज ऑफ हॉर्स समवेयर गिव्स अस एन इमेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. और घड़ी का सीन दिखाया है 6 बजे का. सो इफ आई कलेक्ट ऑल दीज इमेजेस एंड प्रिपेयर अ कोलाज, then I get to know that the writer is talking about a particular area of a factory where the labor class is just about to come, and they will sit in this cab and they will go to their different places. Okay, so this is one prelude. Now what is the commentary? The writer has simply क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, बार बार हम बताते रहते हैं कि T.S. Eliot is a classicist. Okay, he is against industrialization, urbanization, because all these things somewhere have created a disturbed humanity. Clear? आपको बहुत ज्यादा कैब की जरूरत पड़ रही है. It means you are away from your home. It means you are rootless. ये चीजें समझने की हैं. Modern student will take a lot much time to understand all these things. इसके लिए आपको किसी बुजुर्ग के पास बैठना पड़ेगा. कोई भी any person in your family, maybe a grandfather or grandmother, if you sit with them, you will find that what they're talking about. They're simply talking about that life should be lived with your own people. Okay, you should not waste life in just the pursuit of earning money and all. But what we are doing right now, so this is again a poem which is a critique on modernity. Clear?
and different images are telling us the kind of disintegration of human life. Second prelude पे आइए, फटाफट से आइए. The morning comes to consciousness, personification of morning, and the writer says that morning, वो कहना ये चाह रहा है कि लोग जाग गए हैं. Morning comes to consciousness. A faint stale smells of beer. हल्की हल्की बदबू आ रही है बियर की. From the sawdust trampled street. The writer has shown us filthy streets. देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सड़क के ऊपर सॉडस्ट क्या होता है बताइए. जो लकड़ी को हम लोग जब सॉ करते हैं ना, मतलब उसको जब उसका एक पाउडर सा निकलता है जब लकड़ी को चीरा जाता है, तो ओके, उसको सॉडस्ट बोलते हैं. तो कोई कैब फिसल ना जाए, कोई आदमी फिसल ना जाए, तो सभी अपनी दुकानों के आगे वो सॉडस्ट फैला देते होंगे. और जस्ट इमेजिन दैट कि कितनी गंदगी क्रिएट हो जाती होगी. या कोई कैब हॉर्स गई होगी, हॉर्स वाली कैब, तो जो घोड़ा है उसकी लीद पड़ी होगी सड़क के ऊपर. स्मोकी एंड का है तो स्मोकी बुरादा, यस सुनील. और जो स्मोकी एंड का भी जो पोएम में लाइन आई थी, इसका क्या मतलब है कि चारों तरफ. अच्छा, एक बार इमेजिन करो, just imagine 100 years back, because these poems were written in the starting part of the 1910 and around, when there was no electricity. When there was no electricity, just imagine. तो लोग अपने अपने घरों में क्या जलाते होंगे. और वो we are talking about the cold countries, तो they keep their houses warm with chimneys. तो आप just imagine every household has a chimney and their coal is being burnt, wood is being burnt. तो इसका मतलब है कि चारों तरफ ऊपर धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है. ओके, सो जस्ट इमेजिन, आज तो हम वी आर लिविंग इन अ वेरी क्लीन एटमोस्फेयर. ओके, हालांकि पॉल्यूशन हैज बीन क्रिएटेड बाय द व्हीकल्स, लेकिन आपको यू हैव टू गो बैक, एंड हैव टू क्रिएट योर ओन इमेजिनेशन. अच्छा, मैं इमेजिनेशन की बात को बताऊंगा आपको कि इमेजिनेशन की बात मुझे क्यों करनी पड़ेगी. वुड्स नहीं कहना है सुनील, वुड्स का मतलब जंगल होता है, वुड बोलना है, लॉग्स ऑफ वुड बोलना है, फ्यूल जिसको बोलते हैं. अच्छा, मैं भूल ना जाऊं, मैं पोएम तो पढ़ा ही रहा हूं, पहले आप 2-3 राइटर्स के नाम लिखिए आप फटाफट से. एक तो आप लिखिए हेनरी बर्गसॉन, लिखिए फटाफट से. हेनरी बर्गसॉन, HENRI, हेनरी, BERGSON. आई हैव नॉट अपलोडेड इट ऑन माई ब्लॉग, इसलिए आपको ये मेरे से सुनना ही पड़ेगा. हेनरी बर्गसॉन लिखिए फटाफट से, बिकॉज दिस राइटर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरीज ऑफ हेनरी बर्गसॉन. हेनरी बर्गसॉन की 4 चीजें फेमस हैं. द फर्स्ट वन इज राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन. लिखते जाइए फटाफट से. हेनरी बर्गसॉन को 1927 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था. So he's a very great writer, and somehow it is considered that his theories of duration, his theories of Ella Whittle, his theory of say intuition, his theory of laughter, somehow apart from Sigmund Freud and symbolist writers, this was the again an important writer who somehow influenced the modern period. And the writers writing in whether they are novelists, जैसे कल हम वर्जीनिया वुल्फ पढ़ेंगे अगर मान लो. So I'll be talking about again stream of consciousness and say interior monologue and all. So Henry Bergson is considered to be the most important writer who influenced modern writers the writers of 20th, the starting part of the starting decades of 20th century. पहले बताइए, आप लिख भी रहे हो. हेनरी बर्गसॉन की स्पेलिंग है HENRI BERGSON. हेनरी बर्गसॉन. पहला पॉइंट लिखो that he is famous for giving the concept of Dury, जिसको ड्यूरेशन बोलते हैं, concept of Dury. Okay, and that in that Dury he talks about consciousness, के जो ड्यूरेशन है that is linked with our consciousness. Okay, उनका एक ऐसे बहुत फेमस है, लिख लीजिए. Are you writing? आप सब लोग सीरियसली लिख रहे हो ना? लिखिए. मैं पोएम पढ़ाते पढ़ाते उस पोएम को समझाने के लिए डिटेल में आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर इन्फ्लुएंसेस ऑन T.S. Eliot. लिखिए ड्यूरेशन और ब्रैकेट में लिख लीजिए ड्यूरी. DUREE. ड्यूरी इज द फ्रेंच वर्ड, क्लियर. एंड उसके ऐसे का नाम लिखिए टाइम एंड फ्री विल. लिखिए टाइम एंड फ्री विल. बर्गसॉन का ऐसे है. एन ऐसे ऑन द इमीडिएट डाटा ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इसका सब टाइटल है. राइट डाउन time and free will, colon, an essay on the immediate data of consciousness. Okay,
okay, time and free will, an essay on the immediate data of consciousness. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है. सो दैट वाज हिज फर्स्ट. उन्होंने समझाने की कोशिश की थी दैट जो हमारी फ्री विल होती है ना, जो क्रिश्चियन फ्री विल है कि गॉड ने हमें फ्री विल देके भेज दिया एडम और ईव को, और फिर उनको सेटन उनको तंग कर रहा है या उनको वो फ्रूट खाने के लिए मजबूर कर रहा है, तो गॉड डिड नॉट इंटरवीन बिकॉज ही सेड दैट दे हैव बीन सेंट टू दिस गार्डन ऑफ ईडन विद अ फ्री विल. सो ये राइटर बोलते हैं कि दैट फ्री विल could only exist outside of time and space. ऐसा कांट ने कहा था. इमैनुअल कांट का जो क्रिटिक है ये इनका जो स्टडी है, बट ही सेज दैट नो, आवर फ्री विल इज अ पार्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस. तो आगे बहुत डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे, आपको बस इतना याद रखना है दैट इज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी. एंड इस ड्यूरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारे ऐसे आप पढ़ोगे जब आप लोग, क्योंकि उनको पढ़े बिना यू कैन नॉट टीच मॉडर्निस्ट लिटरेचर. Modernist literature, if you are teaching somebody, then it does not mean that you are teaching the translation of a particular poem. If you live in Bengal, you translate the poem in Bengali. If you live in Odisha, you just translate the poem into Odia. If you are in Rajasthan, you just translate the poem into Hindi, and the students are satisfied that we have studied. No, it's not like that. Okay, if to understand these poems, you need to understand that what writers want to convey. Clear? दूसरा पॉइंट लिखिए, intuitionalism. Intuitionalism, that is the second aspect, or say second important point which Henry Bergson is known for. He was awarded Nobel Prize in 1927. Intuition. Okay, intuition के बारे में अब मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई intuition की क्या जरूरत है, because T.S. Eliot, ये जो हमारे बर्गसॉ है ना, इनका ऐसा मानना है कि सपोज हम मैं उन्हीं का एग्जांपल देता हूं. जैसे हम एक सिटी में जा रहे हैं, ओके, कोई भी सिटी है, सो कैन यू रियली सी द सिटी, है ना? नहीं देख सकते ना, क्योंकि हम केवल सिटी को कहां से देखेंगे, जैसे हमारा जो एंगल है उस एंगल से हम उसका वो पर्टिकुलर एरिया देख लेंगे. बट अगर एक ड्रोन ऊपर से देख रहा हो तो दैट विल बी अनदर एस्पेक्ट ऑफ दैट सिटी, इजंट इट? समझाता हूं आपको. देखिए, एक कैमरा से अलग अलग एंगल से एक फोटो ली जाती है कि नहीं ली जाती, अलग अलग. सो वो अलग अलग एंगल्स, डोंट यू थिंक लाइक दीज आर डिफरेंट रियलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि मेरी फोटो यहां से अलग आ रही है, साइड से लूंगा तो अलग आएगी, पीछे से लूंगा तो अलग आएगी, ऊपर से लूंगा तो अलग आएगी. ओके, तो वो जो चीज होती है, वट एवर थिंग, वट एवर एंटिटी यू हैव, एंड यू वांट टू लुक एट दैट एंटिटी. सो डोंट यू थिंक लाइक if a writer, if is writing about something, that is his experience of looking at that particular thing. Clear? And वो कितना इंटरप्रेट करके आप उसको समझा दो विदाउट इंट्यूशन. इंट्यूशन का मतलब समझते हो आप लोग? इंट्यूशन का मतलब होता है दैट आंखें बंद करके एक कितना सुंदर वर्ड है, देखो, TUI, ट्यूशन जो वर्ड है ना, ट्यूशन, जैसे अभी आप मुझसे ट्यूशन ले रहे हैं, इट मीन्स इट इज समथिंग टू नो. एंड इंट्यूशन हिंदी में बोलते हैं आत्म प्रेरणा या स्वतः ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, खुद का. दैट इट इज द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड that we can reach somewhere by using our intuition. Okay, अब कितना आप intuition improve कर देते हो किसी student में, in your classroom, it means you are making that student more and more intelligent. Okay, आप interpretation पढ़ के intelligent नहीं बन सकते. And that's why, the nature of this exam net is changing day by day, day by day. They have been giving us, पता है, अभी my daughter went for an entrance exam. And last year they asked many questions from literature, and so she was just preparing literary questions and all, and I was also guiding her in my car when we were going towards the center of the examination. But then when she came out of the exam, she said that there was not a single question what I prepared. They gave us passages only, and from the passages they were asking questions, and I was very happy. I was happy because it means they would be able to choose the right candidates. Okay, because someone who has the ability to read, someone who has the ability to use his intuition power and can understand it, that can be direct questions नहीं होते आजकल. तो आपके नेट का जो नेचर है वो भी ऐसा होता जा रहा है. हालांकि उन्होंने जब से सिलेबस बदला उसके बाद में उन्होंने केवल एक ही पेपर ऐसा दिया था अभी 1.5 साल पहले, जिसमें उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पैसेजेस देख करके उनमें से क्वेश्चंस पूछे, एंड आई क्लियर दैट एग्जाम ऑल्सो. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दैट मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आए तो दे वर कर्सिंग द NTA कि वो उन्होंने ऐसा कैसा पेपर दे दिया. बट आई वाज वेरी हैप्पी
क्योंकि जो कैंडिडेट रीडिंग में माहिर है, उस वोकैबुलरी इज गुड, वन वोकैबुलरी अच्छी होने से इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाती है, बिकॉज समवेयर वर्ड्स गिव यू एन आइडिया। वर्ड है ही क्या, बताइए वर्ड क्या है? एक वर्ड में एक आइडिया तो होता है ना, लाइक सपोज आई से मैंगो, तो वर्ड जब मैंगो लिखा जाएगा देन दैट इमेज विल बी देयर इन योर माइंड एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मैंगो। सो वर्ड्स आर नथिंग बट कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ एन आइडिया। सो ज्यादा वर्ड्स आपको ज्यादा आइडियाज देते हैं, इसीलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि वी शुड सेव लैंग्वेजेस। जितनी भी डायलेक्ट्स आज मर रही हैं, हमको उन डायलेक्ट्स को रोक लेना चाहिए मरने से, एंड दैट्स व्हाई वी शुड बी मोर अट्यून्ड टू आवर ओन लैंग्वेजेस। और जितना हम ये कर पाएंगे लाइफ में, जितना हम मोटिवेट कर पाएंगे कि गो एंड सेव योर लैंग्वेजेस, चाहे एक लैंग्वेज में 4 स्पीकर ही बचे हों, सो प्रमोट दैट लैंग्वेज, जाओ वहां पे उनकी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स लिखो, बिकॉज लैंग्वेज के वर्ड्स मीन्स आइडियाज। लैंग्वेज खत्म होगी, आइडियाज, एंड आइडियाज आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑल, ठीक है? तो इंट्यूशन पे मैं बात कर रहा था कि सपोज यू आर रीडिंग अ लाइन फ्रॉम होमर, ओके, सो एक टीचर होगा, वो होमर की लाइन को इंटरप्रेट कर देगा, बट विदाउट इंट्यूशन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर। मैं फिर से बोलता हूं, इफ यू आर रीडिंग होमर, okay, somebody can explain, somebody can interpret that line, okay, but without intuition you cannot create that experience based on which Homer wrote that line. That is why Henry Bergson was, so अब आप देखिए कि आपने ये जो अभी फर्स्ट प्रिल्यूड पढ़ी, so there are different scenes, and without your intuition power, without looking your intuition with that particular image and symbol, you cannot create the whole idea of a poem. इसीलिए इंट्यूशन पावर आपका होना चाहिए, तो ये बर्गसन ने कहा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज एला वाइटल। हेनरी बर्गसन का अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया, फॉर विच इज नोन, इज एला वाइटल, ELANVITAL, एला वाइटल, ELANVITAL। एला वाइटल का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही ड्यूरेशन और इंट्यूशन के अलावा एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है आपके अंदर एक ये जो जीने की जो इच्छा होती है ना, वाइटैलिटी, ओके, वाइटलिज्म होता है ना हमारे अंदर कि कितना ही लॉकडाउन है, कितनी ही इनकम नहीं हो रही है, चाहे आपको बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आई वुड लिव, आई शुड लिव, लाइफ इज टू बी लिव्ड, ओके। तो इसका मतलब है दैट यू हैव दिस एला वाइटल इन यू, ओके। सो दिस इज अगेन अ वेरी एवोल्यूशन आपका तभी होगा, ये पूरा जो मानवता है उसमें जो रेजिलियंस जो हमारे अंदर होती है ना, रेजिलियंस एक वर्ड है, इट मीन्स के भूकंप आया, सारा शहर तबाह हो गया, ओके, पर जो जिंदा रह गए, दे वांट टू लिव अगेन, ओके, दे डोंट वांट टू कमिट सुसाइड। इसका मतलब है कि एला वाइटल इज अगेन काइंड ऑफ क्रिएटिव एवोल्यूशन, और ये इनकी एक थ्योरी है, ओके। चलो, उसके बाद है इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाफ्टर का, दैट ही हैज आल्सो रिटन ऑन लाफ्टर, हेनरी बर्गसन। एंड उनका एक ऐसे आपको एग्जाम में आ जाएगा, लिखो लाफ्टर एंड ऐसे ऑन द मीनिंग ऑफ द कॉमिक, लिखो लाफ्टर एंड ऐसे ऑन द मीनिंग ऑफ द कॉमिक। जिनको भी स्टडी मटेरियल मिला है, अभी रिसेंटली आई गेव यू अ बिग PDF on criticism, literary theory particularly. In that you will find this Henry Bergson also, and the detail of this essay also. Clear? So you can search and see because thousands of pages have been supplied to all the students who have taken admission in my institute. तो उनको जब तक वो स्टडी मटेरियल को ढंग से देखेंगे नहीं, they won't be able to understand. ठीक है, चलिए। So एला वाइटल, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए आगे, भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको। फ्रेडरिक नीश, अब एक नाम लिखिए आप, फ्रेडरिक नीश। पोएम हम पढ़ लेंगे, पोएम बीच में अभी अटकी हुई है, बट ये पॉइंट देना बहुत जरूरी। लिखिए फ्रेडरिक नीश, FRIEDRICH। फ्रेडरिक नीश का स्पेलिंग होता है NIETZCHE। फ्रेडरिक नीश का नाम सुना होगा आपने। तो फ्रेडरिक नीश के बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैंने आपको द PDF आई हैव सप्लाइड यू रिसेंटली ऑफ 426 पेजेस आई थिंक, उसमें फ्रेडरिक नीश हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड द डिटेल ऑफ दैट राइटर इज प्रेजेंट देयर। In every second net exam they ask us any question from Friedrich Nietzsche also. अब आज के कॉन्सेप्ट में आप 2 पॉइंट लिखिए अपोलोनियन एंड डायोनीजियन। लिखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में। अपोलोनियन, APOLLONIAN, अपोलो नाम का जो गॉड है उससे कॉन्सेप्ट आया है, अपोलोनियन।
Okay, Apollonian, and Dionysian, Dionysian, Apollonian, Dionysian. ये जो Dionysian का जो concept है, okay, Apollonian and Dionysian, ये he wrote this concept in his book The Birth of Tragedy. लिख लीजिए, this concept of Apollonian and Dionysian comes in his famous book The Birth of Tragedy. Clear? और इसका थोड़ा सा डेफिनेशन मैं बोल देता हूं आपको, आप चाहो तो यू कैन राइट इट लेटर ऑन, व्हेन आई अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. अच्छा, एक आप बताइए, अपोलो जो गॉड है ग्रीक कल्चर में, अपोलो इज गॉड ऑफ वाइटैलिटी. क्लियर? एंड तो लिखिए, आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा. देयर आर टू कॉन्सेप्ट व्हाट फ्रेडरिक नीश ट्राइड टू अंडरस्टैंड, that in Greek culture there are two energies. One is the creative energy of God, Apollo, and there is one energy of the god of wine. In Roman culture, that Dionysian, or that god Dionysus is called Bacchus, the god of wine. कभी देखना Bacchus टाइप करके अगर आप उसकी इमेज देखोगे ना विकिपीडिया पे, तो you'll find एक गॉड है जो शराब पी रहे हैं और उनके जो रथ है उसको चीते या शेर उनके घोड़े की जगह रथ पे लगे हुए हैं. ओके, सो एनर्जी और इररेशनैलिटी, अ गॉड ऑफ इररेशनैलिटी. ठीक है, सो अपोलोनियन इज अ टेंडेंसी, राइट डाउन, अपोलोनियन इज अ टेंडेंसी विद द इंस्टिंक्ट फॉर फॉर्म, FORM, फॉर्म, ब्यूटी, moderation, form, beauty, moderation, and symmetry. Okay, and these four aspects are the aspects of civilization represented by the god Apollo. Okay, Apollo is the god of poetry, and the second god is Dionysus, Dionysus, and that god is that god shows us the instinct of irrationality. That god shows us instinct of irrationality, violence, exuberance का मतलब होता है जोश. Okay, and jazz type of music. Okay, so if you see that somewhere there is form, that is classicism, and somewhere sheer energy. So sometimes it is also you will read somewhere that the concept of this Apollonian and Dionysian is again nothing but the concept of classicism and romanticism. Okay, this concept, these two terms have been given by Apollonian and Dionysian. They have been given by Friedrich Nietzsche in his famous book Birth of Tragedy. तो ये मैंने आपको जानबूझ करके एक्स्ट्रा चीजें बताई ताकि आपको पता चले कि हम मॉडर्न एज पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी. नाउ आई एम कमिंग बैक विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्यूशन समझाना था मुझे, दैट इंट्यूशनलिज्म इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय हेनरी बर्गसॉ. क्लियर? तो सेकंड, वापस प्रिल्यूड पे आ जाइए. The morning comes to consciousness of faint stale smells of beer from the sawdust trampled street with all its muddy feet that press to early coffee stands. अच्छा चलो एक बात बताओ कि बियर की बदबू आ रही है गलियों में, गली में गंदगी है, द राइटर हैज शोन अस फिल्दीनेस देयर, और सुबह सुबह जो लोग हैं वो गली को प्रेस करते हुए दे आर गोइंग टू द कॉफी स्टैंड्स. नाउ व्हाट आइडिया यू गेट अक्रॉस? राइटर वांट्स टू कन्वे अ मैसेज कि द रिफ्रेफ क्लास, ये जो मजदूर लोग हैं, इन्होंने जरूर रात भर शराब पी होगी, बियर पी होगी, और क्योंकि उनको हैंगओवर है तो जब वो सुबह उठे हैं फिर से काम पे जाने से पहले अगेन उनको नशा चाहिए. तो यू सी दैट हम लोग सुबह उठ के चाय जरूर पीते हैं. मुझे नहीं लगता कि 40 साल पहले चाय थी. टी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर दैट वे, एंड रिपीटेडली वी कीप टेकिंग टी दीज डेज, कॉफी एंड निकोटिन और ये सब चीजें हम लोग हमारे. और जितने भी जो रिया का केस चल रहा है चक्रवर्ती का, इफ आई लिंक दैट, don't you think like today's generation has no creative energy of their own? Okay, they have relied on intoxication of one or the other form. चाहे हम लोग भी शामिल है उसके अंदर. आई एम अ टी टोटलर, बट अगर मैं चाय पीता हूं तो मुझे लगता है कि मैं टी टोटलर नहीं हूं. ठीक है,
जैसे धीरे धीरे हम लोग आजकल अपने आप को टी टोटलर मानने लगे हैं, बट नशा तो किसी न किसी चीज का है, किसी को काम का ही नशा है। चलिए, दैट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया एक्चुअली कि सुबह सुबह मजदूर उठ करके कॉफी स्टैंड्स पे जा रहे हैं, इट मीन्स दे आर अंडर अ काइंड ऑफ हैंगओवर, ओके। एंड विद द अदर मैस्कुरेड्स का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ सीन्स। राइटर कह रहा है दैट टाइम रिज्यूम्स, टाइम हैज बीन पर्सोनिफाइड एंड द diurnal life, day to day life, which is quite visible on the streets in a slum area. So the writer shows that the time is repeating those scenes again. One thinks of all the hands that are raising dingy shades, and the writer is showing us that thousands of hands, they are raising their dingy shades. Shades का मतलब पर्दे, curtains, okay, raising dingy shades in 1,000 furnished rooms. There are 1,000 rooms in those slums areas where there is some furniture there, and all have come to life again. They are, they come out of their sleep. Okay, again, this scene again talks about a kind of intoxication of this modern generation. Third part. You tossed a blanket from the bed. The writer has shown someone, we don't know whether a boy or a girl, but that person has tossed blanket from the bed. You lay upon your back, but that person does not come out of bed, lies on the bed, waited, you dozed, उसको बीच बीच में नींद आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, सुबह सुबह कोई उठा, मजदूर उठा, तो वो सुबह सुबह अपनी नींद उड़ाने के लिए कॉफी स्टैंड पे चला गया। इन द थर्ड सेक्शन द राइटर हैज शोन somebody who is wake up now, but lying, and उसको बीच बीच में नींद आ रही है। What can be the reason? इसका मतलब वो रात भर सोया नहीं है, okay? He or she did not have a sound sleep in the night, and watched the night revealing the 1,000 sordid images. Sordid means bad. और उसको रात की 1,000 images याद आ रही हैं. It means there is an image of a prostitute, okay? She must have engaged herself in this business of the flesh, and of which your soul was constituted. चाहे वेस्टलैंड ले लीजिए, चाहे आप ये पोएम ले लीजिए, चाहे स्वीनी अमंग नाइटिंगल्स नाम की पोएम ले लीजिए इस राइटर की, प्रोस्टिट्यूट्स आर अ रिकरेंट मोटिव, ओके। प्रोस्टिट्यूशन को राइटर ने काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क किया है, दैट इज अ मेलेज इन से मॉडर्न लाइफ, क्लियर। तो वो जो लड़की दिखाई है राइटर ने, उसको राइटर कह रहा है कि उसकी जो सोल है वही गंदी है, उसकी सोल सॉर्डेड इमेजेस से कॉन्स्टिट्यूटेड है, बनी हुई है। दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग, वो लेट करके जब ऊपर देख रही है, ब्लैंकली लुकिंग एट द सीलिंग, रूफ ऊपर से होती है ना, अंदर से देखते हो तो सीलिंग, वी कॉल इट सीलिंग, तो वो ऐसे लेटी हुई अगर देख रही है और उसको बहुत सारी इमेजेस दिमाग में आ रही है, इसका मतलब है शी इज थिंकिंग अबाउट, अगेन शी इज रिफ्लेक्टिंग ऑन हर लास्ट नाइट। और वो राइटर ने ऐसे दिखाया फ्लिकर्ड, जैसे कोई मोमबत्ती जलती है और उसकी इमेजेस में कोई चीजें उसकी रोशनी में जो फ्लिकरिंग चीजें होती हैं। एंड व्हेन ऑल द वर्ल्ड केम बैक एंड द लाइट क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स, शटर्स मीन्स दिस गर्ल मस्ट बी लिविंग इन अ काइंड ऑफ टेनेमेंट, अ काइंड ऑफ पक्का काइंड ऑफ स्लम, जिसमें इंस्टेड ऑफ डोर्स देयर आर शटर्स। मेरे को लगता है तुम समझ रहे होंगे मेरी बात। शटर्स तो ऊपर से नीचे आते हैं ना, घर होता है, कमरा होता है तो दरवाजा होता है। इसका मतलब है ये कोई ऐसी जगह पर रहती है जिसमें शटर्स है और उसमें से लाइट अंदर से बाहर से आ रही है। लाइट क्रेप्ट अप, लाइट हैज बीन पर्सोनिफाइड, एंड यू हर्ड द स्पैरोज इन द गटर्स। ये इमेज देखिए, द राइटर हैज शोन नेचर, स्पैरोज मीन्स इनोसेंस, and the sparrows are shown in gutters somewhere. Gutters mean to say, just imagine 100 years ago what kind of sewerage system was there, कि स्लम एरिया होगा तो उसके पास एक कोई होगा, एक ऐसा कम्युनिटी सर्विस होगी सुलभ शौचालय की तरह, जिसमें सब लोग यूज करते होंगे। एंड उसमें जो लोग सुबह सुबह फ्रेश होके आ रहे हैं, तो उसमें राइटर ने एक इमेज क्रिएट किया है जिसके अंदर गटर्स के अंदर स्पैरोज दिखाई है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यू हैड सच अ विजन ऑफ द स्ट्रीट एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड्स, एंड अगेन द गर्ल हैज बीन कंपेयर्ड विद स्ट्रीट। अब देखिए जरा, स्ट्रीट और गर्ल को बार बार लिखने का मतलब है, मैं कल आपको बता रहा था दैट राइटर समहाउ एक इमेज को बार बार यूज करता है, ओके।
तो पॉलिप टॉटन, जो कल मैंने आपको बताया था कि राइटर हैज क्रिएटेड दिस गर्ल लाइक अ स्ट्रीट, कि स्ट्रीट के ऊपर से कोई भी गुजर जाता है तो इट मीन्स शी मस्ट हैव बीन अ वेरी चीप काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट, जिसको कई कस्टमर्स रात को यूज करके गए हैं. Okay, so what the writer says, you had such a vision of the street as the street hardly understands, and this girl has been compared to a street, and street के ऊपर से कितने लोग गुजर गए street को नहीं पता. In the same manner, different sordid images are coming to the mind of this girl, but she does not recall a particular image. Okay, sitting alone the bed's edge, वो bed के edge पे बैठ गई है. Where you curled the papers from your hair. अच्छा, कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त those who can understand the exact meaning of paper curlers? वो अपने बालों में से पेपर के कर्लर्स निकाल रही है. मतलब रात को जो कस्टमर्स चले गए होंगे, लाइक पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन कस्टमर्स stopped coming, then this girl somehow must have readied herself for the next morning, or say so because she is poor. Okay, so she does not have the wooden and the plastic curlers. So वो क्या करती है, अखबार के टुकड़ों को फंसा करके अपने बालों को, कर्लर समझते हैं ना आप लोग, कर्लर जानते हो ना, कि अपने बालों में वो फंसा करके रबर बैंड से बांध लेते हैं अलग अलग जगह से. So you curled the papers from your hair, okay, or clasped the yellow soles of feet. A great symbolism, friends. ये पूरी वाला जो सेक्शन है इसमें बहुत सारे सिंबोलिज्म है, सिंबल्स हैं. इस लड़की ने अपने पैर पकड़ रखे हैं. कई बार हम बैठे बैठे पकड़ लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं अपनी चेयर पे बैठा हूं. ओके, मैं अपनी चेयर पे बैठा हूं और मैं अपने हाथ देखूं या अपने पैर देखने लग जाऊं, ऐसे बैठे बैठे देखने लग जाते हैं अपन, है ना. सो क्लैस्प द येलो सोल्स. अच्छा, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ येलो सोल्स बताइए. एक लड़की के पैर पीले हैं तो इसका क्या मतलब है बताइए. शी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, deficiency of blood, isn't it? It means the kind of malnutrition. She must have gone poverty दिखाने की कोशिश की है. Clasped the yellow soles of feet in the palms of both soiled hands. Soiled hands is again a very great Christian idea, because in any religion this profession of prostitution is considered to be against the mores of a particular society or the moral or ethical values. ठीक है, तो because writer is Catholic in mind, so he considers that if somebody indulges in this kind of profession is उसको पाप कमा रहा है वो. soiled hand का मतलब गंदे हाथ. now literally suppose we take the meaning of soiled hands in a denotative meaning. okay, denotative का मतलब surface level पे अगर हम meaning लें तो हो सकता है उसके पास ज्यादा हाइजीनिक नहीं हो, वो उसके हाथ गंदे हो, बट सिंबॉलिकली एग्जैक्टली द मीनिंग इज लाइक वो उसके हाथ गंदे होने का मतलब है दैट शी हैज committed a sin of indulging herself in prostitution and all. So religious, economic, okay, sociological, different meanings are coming out. आगे चलते हैं फोर्थ पे. फोर्थ की लाइन्स एग्जाम में आई हुई हैं. His soul stretched tight across the skies that fade behind a city block. एक आदमी दिखाया है, उसकी जो सोल है वो सिटी ब्लॉक समझते हो, अलग अलग बिल्डिंग्स दिखाई है राइटर ने. Trampled by insistent feet at 4 and 5 and 6 o'clock. इवनिंग आवर्स दिखाए हैं जिसमें लगातार सड़क के ऊपर there is a great traffic and people are going and coming, and short square fingers stuffing pipes. Again a very great image. Symbolically if you just create an image in your mind, एक मोटी उंगलियों वाला हाथ, स्क्वायर फिंगर्स मतलब लेस सोफिस्टिकेटेड फिंगर्स. आपको पता है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म जब हम करते हैं ना टीएस एलियट पे, तो इनको बहुत नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज ही हैज मेड he has somehow put this working class into the category like they are sinners. But वो जो क्लास कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है that rich are rich because poor have exploited poor are poor because the rich have exploited them. वो जो कॉन्सेप्ट है वो उस पे राइटर का दिमाग शायद नहीं जा रहा है. सो फ्रॉम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो वो गरीबों को ही बार बार इस तरह से दिखा रहा है. So and who he is, because he belongs to the category of haves, rich people. Who has given him the power to look at the poor people like that? तो ये भी एक सीखने की चीज है
कि कौन देख रहा है। गेज का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है पिछली क्लासेस में कि गेज, जैसे हम कहीं खड़े हो जाए एंड यू नो वी बिकम जजमेंटल। अब जजमेंटल होने से काम थोड़ी ना चलेगा। यू हैव टू डू समथिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक यू नो हाउ सोसाइटीज एंड देयर सेक्शंस आर क्रिएटेड एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो अभी पोएम को समझना है सिर्फ कि राइटर ने दिखाया एक गरीब लड़का दिखाया, आदमी दिखाया जो हाथ में उसके पाइप है, स्मोक कर रहा है वो। ओके, अगेन जो इंटॉक्सिकेशन है उसके ऊपर आ गया राइटर। इवनिंग न्यूज़पेपर है उसके बगल में, एंड आईज अश्योर्ड ऑफ सर्टनटीज। ब्यूटीफुल लाइन। अच्छा एक बात बताइए, इफ यू टॉक अबाउट यू नो द नॉर्मल डे टू डे लाइफ विच इज अ boon, but you know that also create a kind of you know boredom, ennui. Existentially there is a term in English, French term ennui. चलो बताओ कितने बच्चों को ennui वर्ड आता है? लिख लीजिए ENNUI. You should be aware about the term ennui. ENNUI. ennui जो है इसका मतलब होता है kind of angst, existential angst, घुटन। एक रोजमर्रा का जो हम जीवन जीते हैं, if you don't have super consciousness, okay, if you have super consciousness, I'm sorry I'm using this word, new word for you, super consciousness, मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि टी.एस. एलियट वॉज हाईली इंटरेस्टेड, हार्वर्ड में उन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी पे कोर्स भी किया था, उन्होंने 2 साल संस्कृत पढ़ी भी है। एंड यू ऑल आर अवेयर दैट द वेस्टलैंड एंड्स विद इट स्टार्ट्स विद द इमेज ऑफ उपनिषदा एंड इट एंड्स विद the ritualistic chanting Om Shanti 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 of Upanishada. लेकिन कहीं ना कहीं he was a Christian through and through. Okay, and Christians have this particular idea that you know a human being is a suffering one. Okay, Christ का जो concept है कि भाई ये हम God के खिलाफ चले गए and we are suffering. तो जो राइटर है ये jealous नहीं है भाई ennui का मतलब, ठीक है कुंदन? ennui का मतलब होता है, ये एनवी नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट सेइंग एनवी, ENVY, आई एम सेइंग ennui, अ फ्रेंच वर्ड, ENNUI। सोच समझ कर मेरे वर्ड्स को लिखा करो। आई एम नॉट सेइंग एनवी, कम ऑन, आई एम यूजिंग द वर्ड ennui, एंग्स्ट। एंग्स्ट इज अ वर्ड, ANGST, एंग्स्ट, जिसका मतलब होता है घुटन। एक एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट होती है हमारे अंदर कि हमें खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, सब कुछ सही है लाइफ में, बट स्टिल कॉन्शियसली यू नो वी फील अ काइंड ऑफ सप्रेशन। उसी को तो बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, सो दिस राइटर समहाउ ही सेज दैट हमारी जो आंखें हैं वो एक रोज का जो डे टू डे लाइफ है, वी आर टू मच यू नो अश्योर्ड, अवर आईज आर अश्योर्ड ऑफ लुकिंग एट दोज थिंग्स। आईज, देखो लाइन पढ़िए दोबारा, क्या कह रही है लाइन? Eyes assured of certain certainties, that we are too much certain that you know these things will come in front of us, and we are certain of that. The conscience of a blackened street, the street can be a human being. Okay, blackened street, as literally the writer shows about you know a street which has been you know colored black because of you know dust, because of the soot. Okay, but a blackened street also means you know the sin, Christian point of view अगर मैं यूज करूं, the conscience of a blackened street, impatient to assume the world. और कहता है कि ये जो गली है ये खुद ही जैसे हम लोग हैं, वी आर लिविंग लाइफ इन लॉकडाउन पीरियड, एंड लेकिन हम सब अंदर से क्या चाहते बताओ? दैट ये कैल्विन ने नहीं कहा है कि हम लोग बॉर्न सिनर हैं, ये तो क्रिश्चियन आइडिया दैट वी आर बॉर्न सिनर। एडम और इव की संतान पाप का परिणाम है, ये तो क्रिश्चियन आइडिया है, इजंट इट? ओके, कैल्विन ने तो एक अलग आइडिया दिया है। कैल्विन ने तो कहा है कि ओनली चोजन कैन बी गिवन सैल्वेशन बाय गॉड, एंड दैट वाज द फादर ऑफ प्यूरिटनिज्म। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको। चलिए, तो अभी मैं लास्ट लाइन पे आ रहा हूं फटाफट से। आई एम मूव्ड बाय फैंसीज दैट आर कर्ल्ड अराउंड दीज इमेजेस एंड क्लिंग द नोशन ऑफ सम इनफाइनाइटली जेंटल, इनफाइनाइटली सफरिंग थिंग। आपको वो ये 4 लाइन देकर पूछ लेंगे दैट हु इज दिस इनफाइनाइटली जेंटल, इनफाइनाइटली सफरिंग थिंग? क्राइस्ट। लिखिए फटाफट से, आपको घर पे बैठ के इनको पोएम्स को दोबारा पढ़ना चाहिए आज। This was a question in exam that the writer is talking about infinitely gentle. Who was infinitely gentle? Christ was infinitely gentle. Okay, and still he was infinitely
suffering thing. It means Christ who suffered for our sin, when he was crucified. Wipe your hands across your mouth and laugh. The worlds revolve like ancient women. ये लाइन एग्जाम में आ सकती है because these are the last lines of a great poem. The worlds revolve like ancient women gathering fuel in vacant lots. ये संसार एक बूढ़ी औरत है और वो सिर्फ ईंधन कलेक्ट कर रही है, खाने पीने का सामान. क्या कर रहा है ये इंसान जब से पैदा हुआ है? कमा रहा है और खा रहा है, कमा रहा है और खा रहा है, और किस तरफ ध्यान नहीं है. नाउ यूज योर इंट्यूशन एंड यू कम टू नो दैट द अल्टीमेट मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट दिस ह्यूमन बीइंग इज नॉट using his attention to the oversoul, is not being religious, and because of that he's suffering again and again and again. So this cyclic idea of suffering is quite unique. अब एक क्वेश्चन उठता है कि राइटर ने इनको प्रिल्यूड्स क्यों कहा? क्योंकि आई थिंक ही वॉज अ जीनियस एंड ही न्यू इट that he could have guessed that what he would write later on. और इनको बोला जाता है the famous poems or the workshops of the great poem The Wasteland, क्योंकि वेस्टलैंड में इन्हीं सब आइडियाज को राइटर ने आगे जाकर के काफी इलेबोरेट करके समझाने की कोशिश की है. तो आज हमने 4 प्रिल्यूड्स पढ़ ली. अब आइए आप आगे. आई विल बी टॉकिंग अबाउट, मैं पूरी पोएम नहीं पढ़ा सकता बिकॉज दैट इज beyond the scope of this class, but थोड़ा पढ़ा देता हूँ so that you people can really understand. At least certain lines will be there in the exam. The love song of J. Alfred Prufrock. Write down. जब वो कॉलेज में थे हार्वर्ड में, तभी उनके वहाँ पे एक हार्वर्ड एडवोकेट नाम की एक मैगजीन छपा करती थी. उस मैगजीन में ये पोएम छपी थी, द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock. And J. Alfred Prufrock is a very very funny poem. बट समवेयर आप देखिए हर दूसरे एग्जाम में इसमें से लाइन पूछी जाती है. सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू टीच दिस पोएम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट ऑल्सो, कि उसको पता होना चाहिए. मैं इसका एपिग्राफ तो ना नहीं पढ़ के सीधा आ रहा हूँ पोएम पे. पढ़िए क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट लाइन पढ़िए. लेट अस गो देन यू एंड आई. एक लड़का है इसमें, ओके, और वो लड़का काफी ज्यादा डेट्स करते करते अच्छा, उसका एक लव सॉन्ग दिखाया है. लव सॉन्ग एक काफी बड़ा एक आयरनी है ये. द टाइटल इज क्वाइट आयरॉनिकल बिकॉज द मोमेंट वी रीड दिस सॉन्ग वी कम टू नो दैट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ लव, देयर इज नो वूइंग, देयर इज नो प्रेज ऑफ द ब्यूटी ऑफ द बिलवड. ओके, इट मीन्स दिस पोएम इज नॉट अ लव सॉन्ग बट द राइटर हैज क्रिएटेड, एक लड़का है और वो इज टू मच एंटेंगल्ड इनटू द सर्टेन क्राइसिस. रिलीजियस क्राइसिस हो सकते हैं, उसके मैरिटल क्राइसिस हो सकते हैं, ओके, होमोसेक्सुअल क्राइसिस भी हो सकते हैं, बिकॉज वो लड़कियों से घिरा रहता है लेकिन आज तक किसी लड़की को प्रपोज नहीं कर पाया. तो और वो बूढ़ा हो गया, ओके, 40 साल का हो गया, अधेड़ हो गया, और उसको ऐसा लगता है कि मैंने किया क्या ये अपनी लाइफ का, ओके, और मैं समय पर अगर प्रपोज कर देता तो शायद मेरी शादी हो जाती. सो एक ऐसी पोएम जिसमें एक डिसइंटीग्रेशन, फ्रेगमेंटेशन, अगेन एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, होमोइरोटिसिज्म, बहुत सारी थीम्स इसके अंदर स्टडी की जाती है. लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल. चलिए, आप में से कौन बताएगा कि स्टाइल क्या है इस पोएम की? ये जो लाइन आई ना, ये एग्जाम में पूछी गई है. When the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. आपको पता है ऑपरेटिंग थिएटर में, ऑपरेटिंग थिएटर जानते हो ना, ऑपरेशन थिएटर नहीं बोलते हैं करेक्ट इंग्लिश में, इट्स ऑलवेज ऑपरेटिंग थिएटर. और उसको थिएटर क्यों बोला जाता है मालूम है आपको? उसको थिएटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले स्टार्टिंग से ही था कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करेगा तो उसको सारे लोग देखेंगे, जो बडिंग डॉक्टर्स है वो, या उनके स्टूडेंट्स, या इवन रिश्तेदार भी मरीज के, इसलिए वो थिएटर कहा जाता था उसको. लेकिन अब तो इट हैज लॉस्ट द वर्ड. ऑपरेटिंग जो टेबल होती है और थिएटर होता है, उस पे जब किसी पेशेंट को हम लोग एनेस्थीसिया दे देते हैं और वो बेहोश हो जाता है. सो द राइटर हैज यूज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज. मैं पूछना चाह रहा था, आर यू अवेयर अबाउट द टेक्निक द राइटर हैज यूज्ड? हमेशा याद रखिए, T.S. Eliot was not happy with romantic writers. Okay? इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस है, अगर मैं उनकी बात करने बैठूं तो इरविंग बेबिट का नाम सबसे पहले आता है, एंड जॉन सेंटियाना.
आप लिख लीजिए, मुझे बाद में मत कहना, कोई क्वेश्चन दिखेगा दैट यू नो हाउ मेनी थिंकर्स इन्फ्लुएंस्ड टीएस एलियट। मैंने क्या क्या नाम बोले बताइए? इरविन बेबिट and John Santayana. These were the writers who were positivists, okay, and they were against romantic writers. Romantic writers intuition पे अपनी poem लिखते हैं. They say that you know our intuition, our imagination is more important. But he says that अच्छा एक और important चीज है, आपको याद है T.S. Eliot is known for his statement about John Donne that an emotion, an idea was an emotion, a thought was an emotion for John Donne, and association of sensibility. आप लोग लिख रहे हो ना? Are you really writing? T.S. Eliot was the one who praised John Donne. He was highly influenced, highly under impression of metaphysical writers. और उन्होंने ऐसे लिखा था कि a thought for Donne was an emotion. Okay, it means emotions से लिखते थे ये लोग, number one. And जो मैंने बोला था association, association of sensibilities एक टर्म है. Dissociation of sensibility का ऑपोजिट बोल रहा हूं मैं, कि जॉन डन और मिल्टन के आते आते, मिल्टन को उन्होंने ज्यादा प्रेज नहीं किया, हमेशा याद रखिएगा. मिल्टन को, मैथ्यू आर्नल्ड को, हार्डी को इन्होंने प्रेज नहीं किया है. इज अ वेरी वेरी ग्रेट राइटर. ही वाज सच अ ग्रेट क्रिटिक दैट उन्होंने लिखा कि हार्डी तो एक मतलब अनडिसऑर्गेनाइज्ड राइटर है, विदाउट एनी बिलीफ सिस्टम लिखता है. मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में बोलते हैं कि जस्ट एन एंथुसियास्टिक अंडर ग्रेजुएट. कितने बड़े सेज क्रिटिक को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया. तो कुछ ना कुछ है जिसको हम समझ सकते हैं, बट समहाउ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो दो लाइन्स है पर्टिकुलरली, इसमें शाम का ढलना हैज बीन कंपेयर्ड टू अ पेशेंट लाइंग ऑन एन ऑपरेटिंग टेबल इन ऑपरेटिंग थिएटर. अब बताइए क्या मतलब निकला? इसका मतलब है कि चारों तरफ शाम पसर गई है और लगता है कि वो ऐसी ही रहेगी, परमानेंट रहेगी. जैसे कि एक मरीज के उठने की कोई उम्मीद नहीं होती, जैसे उसको बेहोश कर दिया गया है, एक बेहोशी सी शाम में है. समझ में आ रहा है? दीज हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड टुगेदर, दैट्स व्हाई इट इज मेटाफिजिकल. इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था बार बार कि टी.एस. एलियट राइट्स इन अ मेटाफिजिकल स्टाइल. ओके, let us go those certain half deserted streets of muttering retreats, of restless nights and one night cheap hotels. वो जो अपनी बिलवड है उसको कह रहा है चलो हम घूमते हैं, चलते हैं, किसी होटल में रात बिताते हैं. सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स, या फिर से वो लाइन आ गई, सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स एंड ऑयस्टर शेल्स, स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट. अगेन दिस लाइन इज फेमस कि स्ट्रीट जो एक स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट में घुस जाती है, वो किसी और में, वो किसी और में, जस्ट लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट इन फिलोसफी. टीडियस आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट आप करते रहो जिसका कोई एंड नहीं है. सो चलते रहें विदाउट एनी डेस्टिनेशन. ओके, तो वो कह रहा है कि चलो अपन घूमते हैं. ओके, ऑफ इंसीडियस इंटेंट to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask what is it. Let us go and make our visit. क्या है विजिट? क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन मत पूछो, चलो हम घूमते हैं. इट मीन्स एनी टारगेटलेस रांधेवू. एक वर्ड है इंग्लिश में, रांधेवू मतलब एक मीटिंग हुई है, लेकिन दैट मीटिंग इज अनसर्टन, दैट मीटिंग इज विदाउट एनी रिजल्ट, दैट मीटिंग इज विदाउट एनी पर्पज ऑल्सो. ठीक है. इन द रूम द वुमन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो. राइम स्कीम. ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है. लड़कियां आ रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, एंड दे आर शोइंग ऑफ. क्योंकि राइटर ने जो लोकेलिटी दिखाई है दैट इज सब चीप लोकेलिटी. चीप लोकेलिटी में द गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो. माइकल एंजेलो तो आपको पता है ग्रेट पेंटर हुए हैं. So if somebody is talking about the paintings of Michelangelo, it means they are showing off, that they belong to, say, good families, middle class families, but they are not. Because ऐसे hotels में writer का जो point of view पहले आप समझने की कोशिश कीजिए. चलिए एक बात बताइए मुझे, हमारा point of view तो कोई रोक नहीं सकता ना. जैसे मैं एजेड आदमियों की कैटेगरी में आ जाऊंगा आने वाले दिनों में, तो मुझे किसी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं और मान लीजिए कि एक लड़की है और वो बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा फैशन करके और क्लीवेज के साथ क्लास में बैठी है.
तो आपको नहीं लगता मुझे बीइंग अ टीचर उसको टोकना चाहिए कि आप लोग प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ क्लास में आया करो? लेकिन मान लीजिए आज का जो लड़का लड़की, मान लीजिए किसी ऐसे जेएनयू में कोई बच्चा बैठा है और वो कह रहा है कि सर माई बॉडी, my life, my clothes, my money, who you are to, question me. Then don't you think like there will be a distraction when a teacher is teaching and a girl is sitting, or a maximum number of girl students are sitting with their cleavages open? तो आप एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक मॉरल बैकग्राउंड लेकर के हम लोग क्लास में घुसते हैं टीचर्स, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बीच में आएगा कि अगर सपोज आई एम कमिंग फ्रॉम, अच्छा मैं इंग्लैंड का टीचर हूं मान लीजिए, एंड आई एम ऑलरेडी सीन ऑल दीज थिंग्स, देन फॉर मी दैट इज ओके, दैट विल नॉट डिस्ट्रैक्ट मी। क्लियर? एक लड़की क्लास में स्मोक कर रही है, मैंने वो मूवी देखी थी, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल जाता हूं, बताइए कौन सा नॉवल है जिसमें गोगोल कैरेक्टर है? एक नॉवल है ना जिसमें एक हीरो का नाम गोगोल है, किसकी लिखी हुई है वो? इनहेरिटेंस, नहीं, क्या नाम है, देखो मैं रोज कुछ ना कुछ भूलता हूं हर पीरियड में, मुझे एक नाम बताइए, गोगोल किसका नाम है? ये है ना अपना झुम्पा लाहिड़ी का नॉवल, झुम्पा लाहिड़ी's novel in which American setting is shown, a Bengali family is there and a child is born and whose name is Gogol. नाम बताइए, याद आ रहा है आपको? चलिए आप इसको लिख लीजिए। उसमें देयर कम्स अ सीन व्हेन द टीचर इज टीचिंग एंड इज आई थिंक स्मोकिंग। एक बार हमारे लिटरेचर फेस्टिवल में देयर वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नहीं, आई एम सॉरी दीपक शर्मा, इनहेरिटेंस लॉस किरण देसाई का लिखा हुआ बुकर प्राइज विनर नॉवल है, उसमें अमेरिका का सीन तो दूसरी तरह से है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, तो एक हमारे राइटर हैं, उन्होंने स्टेज के ऊपर अपनी शराब की बोतल, नेम सेक शताब्दी ने बता दिया हमको, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। लिख लीजिए नेम सेक का हीरो है, कुछ बताए जा रहे हो डस्ट एंड स्नो लिख लीजिए नेम सेक पे मूवी भी बनी है, उसके हीरो का नाम है गोगोल, जो रशियन राइटर है ना गोगोल जिन्होंने द ओवरकोट लिखा है, उसके ऊपर बेस्ड वो नाम रखा गया उसके अंदर, नेम सेक। अब ये आपका एक जीके का वो आपका क्विज हो गया, ये तो एक आपको नहीं मालूम, मुझे तो मालूम है, इसलिए मेरे दिमाग में ऑप्शन आएगा, मैं तो जवाब दे दूंगा एग्जाम में, आप क्या करोगे? चलिए आज आपका होमवर्क है, बट ऑल्सो इनकलकेट इन स्टूडेंट हिज ओन वैल्यूज। बिल्कुल, वो अपनी वैल्यूज कहीं ना कहीं डाल देता है टीचर, लेकिन उसको डालनी नहीं चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बट स्टिल हम तो इंडियंस है ना, हम तो कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर में हमें। एक बात बताऊं आपको, वेस्टर्नर्स आर टॉर्चर्ड बाय देयर ओन मैंने कल रात को ना एक पोस्ट शेयर की थी, आप लोग मेरी पोस्ट रेगुलर अगर पढ़ते हो, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी। लिखिए द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी, लिखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बुक लिखी थी टी.एस. एलियट ने। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस बुक। In that book he says that this multiculturalism is not good for European countries. It will create a problem for them. और आज आप देख रहे हो वहां पे जितने भी बाहर के लोग गए उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। आने वाले दिनों में उनका खुद का, मतलब आपको ताजुब होगा। देखो एक बात बताऊं, कोई मुझे गोली मत मारना, जब हम लोग बोलते हैं ना कि एक राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र है, तो एक हिंदुस्तान है तो वो भी एक हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, जो भी इसकी बात करते हैं। तो ऐसे ही टी.एस. एलियट सेड दैट इंग्लैंड शुड बी अ क्रिश्चियन कंट्री, वेयर, आप इसको पढ़िए, मैंने पोस्ट शेयर की अपने फेसबुक पे, मैं अगर आप कहोगे तो उसको ब्लॉग पे भी डाल दूंगा, ओके। तो ये बुक भी है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जस्ट इमेजिन करके देखिए आप, दैट टी.एस. एलियट वाज अ काइंड ऑफ कैथोलिक राइटर, ही वाज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल राइटर, वेयर समहाउ ही वाज वेरी मच एम्बेडेड इनटू द मॉरल वैल्यूज। और उसने जितने भी रिफ्रैफ क्लास के, पुअर क्लास के जो लोग दिखाए हैं, उन लोगों को उसने हमेशा मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स नहीं दिए, ओके, एंड दैट ही इज क्रिएटिंग इन दिस पोएम ऑल्सो, ओके। नीरज पारिक, गो टू माई ब्लॉग, इट इज ऑन माई वेबसाइट www.mukeshparik.com। हाँ, मैंने 3 बजे रात को पोस्ट किया था ये मैं रात को पढ़ रहा था, देन आई 3 बजे नहीं, शायद मैंने 1 बजे किया होगा, मैं 3 बजे तक नहीं जगा कल रात को। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। मैं पोएम पढ़ रहा हूं, जितना मैं पढ़ सकता हूं पढ़ देता हूं।
So the writer is talking about those girls who are who belong to poor class, okay, but they are pretending that they belong to upper class, and that's why it's ironically the writer is writing that he's talking about the girls are talking about Michelangelo. The yellow fog that rubs its back upon the window panes. फिर से मेटाफिजिकल लाइन कि चारों तरफ जो स्मॉग है, जो फॉग है, उसमें धुआं भर गया है और वो खिड़कियों से टकरा रहा है जैसे कोई अपनी पीठ रगड़ रहा हो. द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, licked its tongue into the corners of the evening, lingered upon the pools that stand in drains, let fall upon its back and soot that falls from chimneys, slipped by the terrace, made a sudden leap, and seeing that it was a soft October night, curled once about the house and fell asleep. The whole systematically, the writer has created the atmosphere of evening and dirt and dust and soot and blackness. And with that, the writer has created an atmosphere of, laziness. Okay, next paragraph. Stanza. And indeed there will be time for the yellow smoke that slides along the street, rubbing its back upon the window panes. There will be time to prepare a face to meet the faces that you meet. अब ये लाइन एग्जाम में आई हुई है. The writer says कि अभी तो टाइम है कि मैं अपने कमरे में जा करके और अपने फेस पे थोड़ा मेकअप कर लूंगा. And time for all the works and days of hands that lift and drop a question on your plate. Time for you and time for me and time yet for 100 indecisions. 100 indecisions का मतलब है this character in the poem, he has become old enough, clear, but he has yet to decide about his life. So indecisiveness, fragmented life, the writer has shown. 100 indecisions for 100 visions and revisions before the taking of a toast and tea. अच्छा एक बात बताइए, if you are not clear cut in your goals in your life, okay, and you are not sure about your love life also, your sexual life also, then you keep changing your partners. And जब आप होटल में बैठे हैं तो क्या ऑर्डर करें, क्या ऑर्डर ना करें. तो अब ऐसी जनता अब है, इस वक्त है. आप किसी होटल में जाके बैठ जाइए और थोड़ी देर के लिए देखिए. अभी एक वो आया था, a news item I read in the e-newspaper कि मजनू का टीला, इट्स एन एरिया इन दिल्ली, अराउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो कहता है कि JNU एंड दिल्ली जो कैंपसेस अब बंद हैं, तो उसमें जितने भी कैफेटेरिया हैं, कॉफी हाउसेज, अब वो सब बंद हो गए हैं. तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, बीइंग अ टीचर आई लिटरली फील कि इज कैंटीन और कैफेटेरिया मोर इंपॉर्टेंट अराउंड अ यूनिवर्सिटी? जस्ट इमेजिन, हैव यू बीन गोइंग देयर टू हैव कॉफीज? Have you been going there to choose your partners and having your dates? Or the young generation should be found in the library somewhere. तो आप देखेंगे लाइब्रेरीज में तो लोग कम नजर आते हैं आजकल, ओके, एंड वो कैफेटेरिया में बैठे हुए ज्यादा दिख जाते हैं. और कॉलेज जाने से पहले दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर ड्रेसेस. मैं दूसरों को दोष नहीं दे रहा हूं. माई डॉटर इज अबाउट टू अटेंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स. And what she was saying me, she was showing me certain dresses, मैं ये खरीद लूँ. Then मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तू एक जीन्स और टी शर्ट में भी कॉलेज जा सकती है. You should ask me like कौन सी बुक्स खरीदूँ, मैं कौन सी बुक्स लेके जाऊँ वहाँ पे. But this is not the burden. Burden is like पहले बताओ मेरी बात समझ में आ रही है क्या? So that moral degradation जिसमें you are more prone towards meeting the demands of your carnal pleasure, योर कार्नल बॉडी, सेक्सुअलिटी, आप उसी के बारे में बात करते रहते हो. तो राइटर कह रहा है कि टोस्ट और टी मंगवानी है होटल में, उसी में इतना इंडिसीजंस, नहीं कॉफी मंगवा लेते हैं, नहीं ये वाली कॉफी मंगवा लेते हैं, नहीं चलो गार्लिक ब्रेड मंगवा लेते हैं, नहीं चलो ये वाला पिज्जा, नहीं वो मंगवा लेते हैं. तो द राइटर इज क्रिएटेड अ सीन इन फ्रंट ऑफ अस. अच्छा मैं एक मिनट थोड़ा सा इसको लिंक कर देता हूं. जब लंदन में कॉफी हाउसेस खुले थे तो द वे ऑफ द वर्ल्ड, वो जो प्ले हम पढ़ते हैं ना, वे ऑफ द वर्ल्ड, बताइए किसका लिखा हुआ है? बताओ. कॉन्ग्रीव का लिखा हुआ है. वेयर द प्ले स्टार्ट्स इन अ कॉफी हाउस. और ये क्वेश्चन नेट में आया था. क्यों आया था? बिकॉज 3 लोग बैठ करके एंड दे आर वाइलिंग अवे देयर टाइम. तो दैट विद द लेट रेनेसां, विद द स्टार्टिंग ऑफ द नियो क्लासिकल पीरियड, इंग्लैंड सॉ रिचरी, ओके, और प्लांटेशन होने लग गया. अमेरिका को कॉलोनाइज कर लिया. इंग्लैंड स्टार्टेड बिकमिंग रिच, ओके, रिचर एंड रिचर. तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे जो लोग थे वो डायरेक्शन लेस हो गए. तो दे स्टार्टेड वेस्टिंग देयर टाइम इन कॉफी हाउसेस.
तो अगर कोई जा रहा है कॉफी हाउस में बिना किसी काम के, एंड दे हैव अ लॉट मच लेजर, आप कभी भी आप पढ़िएगा लेजर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी कभी आपको समझाऊंगा किसी दिन. सो द राइटर हैज क्रिटिसाइज्ड दैट कॉन्सेप्ट. In the room, the women come and go talking of Michelangelo, and indeed there will be time to wonder, do I dare and do I dare. अब वो लड़की के साथ बैठा है और वो ये सोच रहा है कि इसको प्रपोज करने की हिम्मत कैसे करूं. टाइम टू टर्न बैक एंड डिस्टेंट द स्टेयर. उसको इतना घबरा रहा है कि वो उसको लगता है कि मैं वापस उतर के भाग जाता हूं. विद द बॉल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर. यहाँ पे उसके गंज निकल आई है. गंज समझते हो, उसके बाल उड़ रहे हैं. इट मीन्स ही इज बिकमिंग एजेड. ये लाइन एग्जाम में आई हुई है. दे विल से हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन. वर्ल्ड फेमस लाइन. लोग कहेंगे इसके बाल कितने उड़ रहे हैं. मतलब ही इज मोर प्रोन टू about the responses of the other people about him. He knows that he has so far not settled in his life, not chosen his career, not the girl. It means एक ऐसी लाइफ मॉडर्न लड़का जी रहा है, और ये लाइफ आपको दिख जाएगी जब हम लोग मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं. तो पीपल they were in that age in 1920s, and क्योंकि ये पोएम जब लिखी गई थी तो 1910 के आसपास ही लिखी गई थी, 1910 और 15 के आसपास. तो फ्रांस में इस तरह का पीरियड चल रहा था जो हम आज जी रहे हैं. दे वर इन दैट पीरियड बाय दैट टाइम. ठीक है. और होमोसेक्सुअलिटी भी इंक्रीज हो रही थी डे बाय डे. माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन. ये क्वेश्चन आया हुआ है. अच्छा बताइए, अगर मैं अपनी कॉलर को ऐसे कर लूं, ऐसे ऊपर कर लूं, चिन, क्या करने के लिए? बट सपोज आई हैव wrinkles here, okay, I look bit old, तो मैं अपनी कॉलर को थोड़ा अपना स्वैग दिखाने के लिए, that I'm young. तो कह रहा है कि my morning coat, my collar mounting firmly to the chin, my necktie rich मतलब मैं कंट्रास्ट कलर की टाई पहन लेता हूं, जिससे थोड़ा मैं मेरे जो बॉडी के जो रंग है, जो मेरी बॉडी के अंदर जो शाइनिंग थी वो तो खत्म हो गई है. तो मैं रिच टाइप पहन लेता हूं. मॉडेस्ट बट असर्टेड बाय अ सिंपल पिन. लेकिन मैं सिंपल पिन लगा लूंगा. ये अंदर ही अंदर सोच रहा है. जैसे मान लीजिए मैं क्लास लेने से पहले आई बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट माई हेयर. सपोज कि मैं क्लास कैसे लूं. आप देखिए दिस एटीट्यूड के बिना तैयार हुए कई बार मैं तेल लगे बालों में आपको पढ़ा सकता हूं, एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट. मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, क्योंकि इट मीन्स आई एम अ प्रोफेसर. मुझे मालूम है कि मेरा पढ़ाई जो है, द थिंग आई एम टीचिंग विच इज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स. तो लेकिन आपको नहीं लगता जिस एज में हम जी रहे हैं, बैक मत बोलिए सरिता, हम बैक नहीं है बेटा. शायद दे विल फॉलो अस इन द कमिंग टाइम, क्योंकि द अदर डे आई वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर कि हम लोग भी उनकी तरह हो जाएंगे तो 100% कंज्यूमरिस्ट बन जाएंगे. ये कंज्यूमरिज्म ही तो है कि आपको बहुत सारे टी शर्ट्स की जरूरत पड़ने लगी है, आपकी पॉकेट में पैसा टिक नहीं रहा है, आपकी स्लंप इसीलिए आ रही है. और अदरवाइज देयर इज नो क्या बोलते हैं, मतलब डिप्रेशन इन द मार्केट. इसका मतलब है मार्केट इज लूमिंग लार्ज ऑन आवर माइंड्स. तो आगे बढ़ रहा हूं. दे विल से बट हाउ इज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन. लेकिन वो कहेंगे, वो देख लेंगी लड़कियां कि अरे इसकी टांगे पतली हैं, बाजुएं पतली हैं. ये पेटी थिंग्स, अनइंपॉर्टेंट थिंग्स उसके यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर रही हैं. दिस इज द आयरनी एंड द राइटर इज मेकिंग फन ऑफ. एक बात बताइए, एक लड़की पार्टी में जाने से पहले तैयार होने को लेकर एक ऐड आता है ना हिमालय का, कि उसकी फुंसी है तो वो बेड के नीचे छुप जाती है कि मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी. अरे भाई, हु इज गोइंग टू लुक ऑन यू, कम ऑन. आपकी फुंसी को कौन देख रहा है? लेकिन आज की पूरी जनरेशन इस चीज पर है कि दे आर मोर कंसर्न अबाउट द आउटर लुक्स. ओके, सो डिस्टर्ब द यूनिवर्स. समझ में आई लाइन आपको? फिर वो कह रहा है इन अ मिनट देयर इज टाइम फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स व्हिच अ मिनट विल रिवाइज. फिर हम फॉर डिसाइड करते रहेंगे. फॉर आई हैव नोन देम ऑलरेडी, नोन देम ऑल. अब देखो, जितनी भी लड़कियों से वो मिलने, अब आज जिस लड़की से उसकी डेट है, वो कह रहा है कि मैं उनसे पहले मिल चुका हूं सभी से. हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून्स. आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून. अब ये लाइन एग्जाम में आई हुई है. इसीलिए एमसीक्यूज की बुक से एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होता बताओ? बिकॉज आप कितनी देर तक रटोगे. यस, दैट्स व्हाई आई प्रोन रिवीजन क्लास में भी मैं आपको पोएम पढ़ाने बैठ गया. वो कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को कॉफी स्पून में खत्म कर दिया है. अब बताइए इसका मतलब कितनी कॉफी इसने पी है, कितनी इसने आउटिंग की है गर्ल्स के साथ में. आई नो द वॉइस इज डाइंग विद अ डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फार्दर रूम, सो आई हाउ शैल आई प्रिज्यूम. मतलब मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? जैसे होता है ना कई बार कि मैं वहां जाके ऐसे बैठ जाऊंगा
हेलो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे करूंगा, हेलो, ये समझे, मतलब वो मतलब काफी रिहर्सल कर रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, मतलब हिज होल माइंड इज बिजी इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसका मतलब है कि देयर इज नो लव, ओके, एंड इज मोर कंसर्न अबाउट हिज आउटर अपीयरेंस. And I have known the arms already, known them all, arms that are braceleted and white and bare, but in the lamplight downed with light brown hair. Is it perfume from a dress that makes me so digress? Or, the moment he sits with a girl, his, mind gets more entangled into the perfume of that girl. Okay, the smell that is coming. It means, he's more sensuous, sitting with the girls, and that's why he was unable to get associated spiritually, with the girls he met in his life, and he was more kind of sensuous person. Okay, समझ में आ रहा होगा. Arms that lie along a table or wrap about a shawl, and should I then presume, and how should I begin? कहता है कि he's imagining and doing rehearsal in his mind कि लड़कियां चारों तरफ बैठी हैं, तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा. Okay, shall I say I have gone at dusk through a narrow street and watched the smoke that rises from the pipes? और फिर वो एक बहाना बना रहा है कि क्या मैं ऐसे कुछ भी बात करके स्टार्ट कर दूंगा अपनी बात, क्या बात करूंगा. नेक्स्ट लाइन, I should have been a pair of ragged claws scuttling across the floor of silent seas. अचानक से क्रूअल इमेजरी आती है. वो कह रहा है कि मेरे पास क्लॉज होते ना तो ज्यादा बढ़िया था, कि मैं अपनी बात को तुरंत पिक करता और डाल देता उनके सामने. मतलब he gets nervous in front of girls. And the afternoon, the evening sleeps so peacefully, smoothed by long fingers, asleep, tired, or it malingers, stretched on the floor here beside you and me. Should I, after tea and cakes and ice आइसक्रीम मंगा लो, फिर केक मंगा लो, फिर टी मंगा लो. मतलब वो बैठे हैं किसी भी चीज के बिना. थैंक यू नीरज. चलिए आगे पढ़ते हैं. हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट. ये लाइन एग्जाम में आई हुई है बच्चों, कि मैं टी मंगा लूंगा, केक्स मंगा लूंगा, आइसक्रीम मंगा लूंगा. हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस. क्राइसिस का मतलब है कि क्योंकि देखो, आप कब नहीं कह सकते बताओ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं. ये ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, एक लवर आपने कभी नहीं देखा होगा. मैं थोड़ा सा पर्सनल होके बता देता हूं आपको. हालांकि आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वेदर इट शुड लुक वेरी डिसेंट टू यू और नॉट. मैंने अपनी लाइफ में जैसे जिंदगी में मुझे जो लड़की चाहिए थी वो मिली ना पहली बार, तो मैंने उसको प्रपोज किया. और पता है प्रपोज कैसे किया? ऐसे नहीं किया कि मेरे से फ्रेंडशिप करोगी क्या. लिटरली आई सेड, विल यू मैरी मी? एंड द गर्ल वाज सरप्राइज्ड. शी सेड कि कैसा लड़का है, बदतमीज, एकदम शादी की बात कर रहा है. बट मैं फिर उसको सेकेंड टाइम प्रपोज किया, थर्ड टाइम, और उसके बाद एंड द फर्स्ट मीटिंग वॉज इन अ टेम्पल. हमारे जयपुर में बहुत बड़ा टेम्पल है, बिरला टेम्पल. और मैंने उसको जब शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ऐसा लड़का है, तो उस लड़की ने उसको कहा कि ऐसे लड़के तो होते ही नहीं है, इसका मतलब है कि या तो फ्रॉड होगा या सच्चा होगा. एंड नाउ शी इज माई वाइफ. तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि मैं, आई वॉज अ वेरी थिन काइंड ऑफ बॉय, नॉट वेरी हैंडसम, बट वेरी मच ट्रू टू माई हार्ट एंड माई फीलिंग्स and with my emotions, and we had a very good training of religiosity and moralities in our house. तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की मुझे मेरे ख्वाबों की लड़की है, तो मुझे इसको प्रपोज करना है और मैं कर देता हूँ. मुझे क्या डर लगेगा? मुझे ना तो पिटाई का डर लगा, ना मुझे इस चीज़ का डर लगा कि मुझे, इसका मतलब क्या है, बाय रिलेटिंग माई फीलिंग्स. एंड नाउ 20 years of successful marriage shows that मुझे इससे सुंदर लड़की मेरी लाइफ में अभी तक नजर नहीं आई. इसका मतलब है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, और वो है हाउ मच बोल्ड यू आर. डू यू रियली लव समबडी? आपके वन नाइट स्टैंड्स तो नहीं है कहीं लाइफ के अंदर. ओके, तो ये राइटर देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है. वो कह रहा है कि उसको हिम्मत ही नहीं हो रही है. वो बार बार लड़कियां बदल रहा है और वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इस क्राइसिस. कि आप मतलब उस मोमेंट तक जाओगे ही कैसे? इसका मतलब है देयर इज नो लव. ओके, बट दो, अच्छा मैं एक बार टी.एस. एलियट की पर्सनल लाइफ बता दूं. उनको जिस लड़की से प्यार हुआ था ना, विवियन से, उससे उन्होंने शादी कर ली थी. ओके, चलिए आप वो भी हम बाद में बात करेंगे. Have the strength to force the moment to its crisis, but though I have wept and fasted, wept and prayed. ये लाइन आ सकती है इस बार. कहता है कि he tried to become religious,
ओके उसने फास्ट रखे, उसने वो अकेले कमरे में रोया, दो आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बॉल्ड ब्रॉट इट अपॉन अ प्लेटर। अच्छा ये सुसाइडल इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मैंने अपनी गर्दन को काट करके प्लेट पर लाते हुए भी अपने आप को देखा, अपने दिमाग में व्रत किए, रोया, आई एम नो प्रॉफिट एंड हेयर इज नो ग्रेट मैटर। अचानक से उसको इतना इंपॉर्टेंट जो मोमेंट है लड़की को प्रपोज करने का, अचानक से लगता है मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, ना ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, और वो जो ग्रेट मोमेंट है वो धीरे 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 उड़ गया, चला गया। आई एम अनेबल टू रीड योर कमेंट्स राइट नाउ, आई अंडरस्टैंड, मैंने बात ही ऐसी कर दी है दैट स्टूडेंट वुड राइट कमेंट्स एंड ऑल। पता नहीं तुम क्या लिख रही हो, लेडी लाइक। या we have become a talk of discussion। मेरा एक कजन भी आपके साथ बैठकर मुझे दिख रहा है, he knows about my love life and my marriage that was a kind of first marriage in my family, outcast, but yeah, that is a thing that one should be bold enough, bold। जैसे मेरा सपना है मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूं, तो आपने देखा है मैं आपको बताता रहता हूँ, मैं नेट पर नेट देता रहता हूँ, सेमिनार्स अटेंड करता रहता हूँ। कोई भी ऐसा टीचर बता दीजिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहा हो और सेमिनार में जा रहा हो, नहीं जाते हैं, क्योंकि सेमिनार में जाने का मतलब है दैट आपका इंस्टीट्यूट 3 दिन 2 दिन बंद रहेगा। मैं केरल चला जाता हूँ, मैं मलेशिया चला जाता हूँ सेमिनार अटेंड करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अल्टीमेटली दिस रेस विल एंड इन अ यूनिवर्सिटी, ओके, ऑफ माई चॉइस। तो आपको पैशनेट होना ही चाहिए। वो लव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गोल, कि आपको उसमें भी पैशनेट होना चाहिए। आपको अगर क्या कहते हैं उसको, कुछ बनना है तो उसमें भी आपको वो लेट भी मिल सकती है। जैसे मुझे लगता है आई विल बी वेरी लेट इन माई गोल, लेकिन ऐसा लेट और जल्दी का कुछ नहीं है। आपके पास गोल तो है कम से कम, लेकिन अगर आपका गोल ही खत्म हो गया तो ये राइटर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अब उसको वो गोल ही नहीं नजर आ रहा है। वो कह रहा है, और ये आई एम नॉट अ प्रॉफिट, ये लाइन आ सकती है, आई एम नो प्रॉफिट एंड हियर इज नो ग्रेट मैटर, आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर एंड आई हैव सीन द एटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्निकर एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड। साफ साफ कह रहा है कि मैं तो डर रहा था। एंड वुड आई हैव बीन वर्थ ऑफ इट आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स एंड मार्मलेड, द टी अमंग द पोर्सिलेन। जो कप हैं होटल में, उन कप्स में मैं लगातार कॉफी पीता जा रहा हूं, चाय, अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, वुड इट हैव बीन वर्थ while to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball। मतलब ये इतनी बड़ी बात लग रही है कि इस बात को करना लाइक टू कैप्चर यूनिवर्स इनटू अ बॉल, टू रोल इट्स टुवर्ड्स सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, टू से आई एम लेजरस कम फ्रॉम द डेड। ये लाइन एग्जाम में आएगी। What the writer wants to convey, Lazarus का मीनिंग पता है आप लोगों को? Do you know the meaning of Lazarus? Lazarus was, it is a parable in Bible in which Christ ने एक बार एक मुर्दे को जिंदा किया था। तो ये जो Lazarus है ना, वो आदमी था जो मर गया था, and Christ touched him, और वो यूनिवर्स वो वापस जिंदा हो गया। कुछ नहीं, मैं एक स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी ढूंढ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, इनमें अगर मुझे जॉब मिल जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। आई हैव क्रिएटेड माई ओन यूनिवर्सिटी नाउ, ठीक है। चलिए, आई एम लैजरस कम फ्रॉम द डेड, ये लाइन एग्जाम में आ सकती है। यू कैन अंडरस्टैंड कि राइटर फील्स दैट हिज प्रपोजिंग पीपल, गर्ल्स, ओके, is such a great thing for him that he feels के मैं मरी जाऊं, and then he feels himself dead. Come back to tell you all, I shall tell you all. If one setting a pillow by her head should say that is not what I meant at all, that is not it at all। अच्छा, अगर मेरे मुंह से निकल गया लड़की के लिए प्रपोजल, और वो लड़की थोड़ा सीधे होके बोली कि अच्छा तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो मेरे मुंह से निकलेगा that is not what I meant at all, that is not at all। मतलब कि वो घबरा जाएगा। इसका मतलब है, जैसे होता है ना कि एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया और लड़की ने कहा क्या, और वो नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था कि तुम तो मेरी बहन लगती हो। इसका मतलब है, राइटर ऐसे कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा मतलब डिलेमा में है इस वक्त। क्लियर? And would it have been worth it after all? Would it have been worthwhile after the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets, after the novels, after the teacups? कैसे मॉडर्न जनरेशन अपना टाइम पास करती है, नॉवेल्स पढ़ती है, कॉफीज पीती है, आफ्टर द स्कर्ट्स दैट ट्रेल अलोंग द फ्लोर एंड दिस एंड सो मच मोर, इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन।
वो खुद से इज आस्किंग अ रेटोरिकल क्वेश्चन, क्या ये इतना इम्पॉसिबल हो गया है मेरे लिए कि मैं ये पूछ नहीं सकता उस लड़की से? बट एज इफ मैजिक लैंटर्न थ्रू द नर्व्स इन पैटर्न्स ऑन अ स्क्रीन, वुड इट हैव बीन वर्थवाइल? ये क्वेश्चन आ जाएगा, वुड इट बीन वर्थवाइल, ये बार बार आ रहा है। इफ वन सेटिंग अ पिलो, ये हो चुकी लाइन में अगले स्टैंजा पे आ गया हूं। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी, ये लाइन एग्जाम में आई हुई है। अब देखिए कितने, मेरे ख्याल से 10 बार तो इसमें से क्वेश्चन आ गया है। दैट्स व्हाई आई चोज दिस पोएम टू टीच यू ऑनलाइन। आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, नाउ व्हाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस दैट दिस राइटर हैज लिंक्ड हिमसेल्फ विद प्रिंस हैमलेट? बताइए। क्योंकि प्रिंस हैमलेट इज कंसिडर्ड टू बी a character of Shakespeare who was an embodiment of procrastination. What is the meaning of procrastination? To delaying things. Okay, करूं कि ना करूं, क्या करें कि ना करें, ये कैसी मुश्किल है। ओके, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन। मैं आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी, मैं कोई प्रिंस हैमलेट थोड़ी हूं, मतलब मैं कोई इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है मेरी लाइफ में कोई। Am an attendant lord, one that would do to swell a progress, start a scene or two, advise the prince, no doubt an easy tool। फिर वो कहता है कि अगर कोई प्रिंस होता तो उसको एडवाइस करना आसान होता। Deferential मतलब respect, glad to be of use, politics, cautious, meticulous, full of high sentence, but a bit obtuse, at time indeed almost ridiculous, almost at times the fool। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अगर मैं प्रिंस नहीं हूं तो मैं फूल हूं। I grow old, I shall wear the bottoms of my trousers rolled, ये लाइन एग्जाम में आई हुई है। ओके, बोलिए मेरे साथ साथ, I grow old, I shall wear the bottoms of my trousers rolled। मतलब जैसे अभी जो फैशन चला हुआ है ना कि आपके जो एंकल्स है उससे उतनी ऊपर आप पैंट पहनते हो तो उससे थोड़ा आदमी यंग लगता है। ओके, तो वो कह रहा है कि मैं अपनी जो जीन्स है या अपनी पैंट से उसको रोल कर दूंगा जिससे थोड़ा सा मेरा शरीर दिखेगा। ओके, मेरी टांग दिखेगी तो मैं थोड़ा यंग लगूंगा क्योंकि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं। यू नो, इट्स टू मच कॉन्शियस अबाउट टू शो हिज मैस्कुलिनिटी। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्या मैं अपने बालों को पीछे कंघी कर लूं? डू आई डेयर टू ईट अ पीच, पीच इज रिच इन इंप्रूविंग टेस्टोस्टेरोन। तो वो कह रहा है कि मैं पीच खाने लग जाता हूं ताकि मैं वापस से यंग हो जाऊं। आई शैल वियर वाइट फ्लानल ट्राउजर्स, फ्लानल समझते हो, एक कपड़ा होता है जो जिससे थोड़ा सा गर्मी रहती है, वार्म क्लॉथ होता है। मैं फ्लानल की ट्राउजर्स पहनने लग जाऊंगा ताकि मेरे को सर्दी नहीं लगेगी। एंड वॉक अपॉन द बीच, और बीच पे चलूंगा ताकि लोगों को लगेगा कि ये यंग है। आई हैव हर्ड द मरमेड्स सिंगिंग ईच टू ईच, ये लाइन भी एग्जाम में आई हुई है। मरमेड्स का मतलब यहां पे क्या है? गर्ल्स। That girls is again being very sensuously telling us that he's prone to listen to the girls around him and he's feeling that girls are looking at him. Okay, shall I ये भी हो गई। I do not think that they will sing to me, लेकिन he is also aware that he has grown old and no girl will be giving him response. Okay, I have seen them riding seaward on the waves, combing the white hair of the waves blown back when the wind blows the water white and black. We have lingered in the chambers of the sea, ये लाइन्स लास्ट 3 लाइन्स पढ़ रहा हूं जो एग्जाम में आ सकती हैं। We have lingered in the chambers of the sea. The writer has imagined certain chambers of sea and we all are at sea, okay, by seagulls wreathed with seaweed red and brown, till human voices wake us and we drown. Beautiful lines। कहता है हम सब समुद्र में डूब रहे हैं और चारों तरफ समुद्री लड़कियां मतलब मरमेड्स हमारे को आवाज लगा रही हैं। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस, हमारे अंदर का इंसान जब तक जाग नहीं जाता हम डूबे हुए ही हैं। सो ये जो एग्जैक्ट मीनिंग है ना इस लास्ट लाइंस का, दैट यू हैव टू वेक अप, you should give a wake up call to the real human being, the spiritual human being in you, and you should come out of these outward traps of humanity, the sexualities and the sensuousness and all. Okay, and until you don't do that you are drowned into sensuality. Okay, so I took the task to read this whole poem in front of you. Wherever it was necessary I elaborated that,
and other poems I've uploaded, but as you all know that it is around 2 hours today. Continuously I have been teaching you. So tomorrow, in tomorrow's class, I'll be talking more about this writer. Meanwhile, go to my website and blog and keep reading the things. I'll again upload a quiz, an important quiz today on my blog regarding this writer. Thank you very much.